Namaskar. Good evening to all our viewers who have joined us today for this session, a special session on the occasion of Teachers' Day. Friends, we are all here gathered today to celebrate Teachers' Day with the current teachers of our school, KV Karanja. टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं हमारी पूरी अपनी और अपनी पूरी कोर टीम की तरफ से सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। टीचर्स डे टू ऑल आवर टीचर्स। Today, as we are going to start the session, we cannot start it without paying our tributes to one of our beloved teacher whom we lost on 1st of September, Mrs. Rajeshwari Dinesh Trivedi Madam, a teacher who was so intelligent and expert in her subject that she never used a textbook to teach us. आई थिंक कि शायद मैं उनके बारे में बोलने के लिए भी मे बी आई एम नॉट एलिजिबल टू टॉक बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं और वो टीचर रहे हैं। छात्र और छात्राएं चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, शिक्षकों के ऊंचाइयों को छू नहीं पाती हैं। तो इसीलिए आज हमने हमारे ही केवी परिवार की एक अपनी ही मैडम, अपनी ही सदस्य से रिक्वेस्ट की है कि वो त्रिवेदी मैडम के बारे में, राजेश्वरी मैडम के बारे में कुछ कहें, दो शब्द कहें और हम सब की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो शुरुआत करते हैं एक श्रद्धांजलि से। Today is a very auspicious day for us. Teachers' Day on 5th of September used to celebrate every year, I remember, and you all still continue to carry on the tradition. On this day, I would like to dedicate this Teachers' Day to my very close and dear friend, Mrs. Rajeshwari Trivedi, whom we lost 4 days ago. She was very close to me. We spent so many years, 10 years together in KV Karanja. She was just like a family member. We had gone for an all India tour with myself, my kids, and my dad to Kashmir, where we stayed in a houseboat. Then we went and visited the Golden Temple, Amritsar. After that, we went to Delhi. After touring Delhi, we went to Agra and saw the Taj Mahal. I have all these sweet memories with her. We used to be very united and happy family in Karanja. She taught both my daughters, Simi and Preeti, and she's very close to our hearts. We shall always treasure the sweet memories and the days spent in her company. She was very popular with the staff and the students of KV Karanja, who still remember her a lot.
great KV Karanja family, and especially to Mr. Trivedi, who lost his better half. He may God give him strength to face this tragedy. Our prayers are with him. God bless our KV Karanja family. And once again convey my condolences to Mr. Trivedi. I dedicate today's function to Mrs. Rajeshwari Trivedi. All the best, my KV Karanja family. Thank you. Thank you so much, madam. As she said, yes, we are going to dedicate today's session, not only today's session, but this Teachers Day to her. हमारे त्रिवेदी मैडम के लिए आज का हमारा ये सेशन समर्पित होगा। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम से। और आज हमारे साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे विद्यालय के करंट जो प्रिंसिपल हैं वो शामिल हुए हैं हमारे साथ में, और मैं उनका स्वागत करती हूँ इस सेशन में। संजीव सांबरिया सर। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर सेशन सर। सर, हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बार ये हम लोग लकी मान सकते हैं अपने आप को कि आज आप हमारे साथ में हैं इस सेशन के लिए, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। तो शुरू करते हैं सर आज का सेशन। आपके साथ हम आपकी टीम है, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे व्यूवर्स से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगभग 14 व्यूवर्स हैं हमारे साथ में अभी, और मैं हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, सारे व्यूवर्स का भी। तो हम बुलाते हैं अभी, हम स्वागत करते हैं स्वाति जोशी मैडम का, जो हमारे विद्यालय में संस्कृत की टीचर हैं, शिक्षिका हैं। तो स्वाति मैडम। नमस्कार मैडम, वेलकम टू दिस शो। नमस्कार मैडम, वेलकम टू दिस सेशन। और साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे कुछ और एनर्जेटिक टीचर्स भी, प्रिंसिपल की तरह टीचर्स भी एनर्जेटिक ही हैं हमारे। इनमें मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऋतु मिश्रा मैडम को कि आए हमारे साथ जुड़ें इस सेशन में। नमस्कार आप सभी को, मेरा शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम मैडम। और इसके बाद हमारे साथ जुड़ने वाली हैं गीता सबरवाल मैडम। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम के लिए। सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं हमारे एक और शिक्षक केंद्रीय विद्यालय के ही, तो म्यूजिक टीचर हैं हमारे विद्यालय में, सचिन सर, सचिन परदेशी सर। शायद उनके जुड़ने में अभी थोड़ा समय और लग जाएगा टेक्निकल इश्यूज में। तब तक हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सर, हमने ये सेशन आज हम जो है ये सेशंस काफ़ी समय से कर रहे हैं, हमारे सारे टीचर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हमने ये सोचा कि इस टीचर्स डे के दिन हम हमारे करंट टीचर्स के साथ बात करें और उनके विचारों को भी हमारे जो टीचर्स हैं उन तक पहुँचाएँ। तो सर, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल सर आपसे ही शुरू करना चाहूँगी इस सेशन के बारे में। आपसे एक सवाल पूछूंगी सर। आप आज प्रिंसिपल हैं, कभी स्टूडेंट रहे होंगे। आज क्योंकि टीचर्स डे है, हम लोग याद करेंगे अपने अपने स्कूल डेज को, आपके टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपको इस योग्य बनाया कि आज आप अपने अपने फील्ड्स में टोटल एक्सपर्टीज है। तो प्रिंसिपल सर, जाते हैं आपके बचपन के दिनों में, आपके स्कूल डेज जी, बताएं आप आपके कुछ स्वीटेस्ट मेमोरीज जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहेंगे सर। आज से लगभग जब 25-30 साल पहले हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, तो मुझे लगता नहीं कि उस समय कोई विशेष रूप से कुछ ऐसा प्रयास शिक्षक और छात्र दोनों ही करते होंगे कुछ विशेष करने का। और यही सबसे बड़ी विशेषता थी कि सब कुछ बड़ा सिंपल था। उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो बच्चों के पास एक ही काम था, खेलो, खाओ और पढ़ो, बस। और
मानसिक रूप से भी परिवार और स्कूल इतना सशक्त था कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब चीज़ों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मेरे पिताजी खुद एक शिक्षक थे और हम उनके साथ आदिवासी अंचल में मेरे पिताजी पोस्टेड थे, तो 5वीं तक तो हमने लाइट देखी नहीं। कभी जब गर्मी की छुट्टियों में मामा के आते थे तो हम लाइट देखते थे। और हमने जैसे चिमनी और लालटेन कहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसमें पढ़ाई की थी। और बाकी वहाँ वनवासी बच्चों के साथ मैंने खूब मस्ती की, बकरियां चराने से लेकर पेड़ों पर चढ़ना, कूदना, तीर कमान चलाना, गिल्ली डंडा खेलना। और उस समय वहां पर उसके पेड़ हुआ करते थे जिसका आज फर्नीचर बनता है, सागौन का। उसके बहुत बड़े पत्ते होते हैं, उन पत्तों पे मध्याह्न भोजन खाना। सबसे पहले जो मिड डे मील है वो ट्राइबल एरियाज में शुरू किया गया था, मुझे आज भी याद है, दलिया मिला करता था उस समय। और 10 बजे से स्कूल लगता था और 4 बजे 3-4 बजे छुट्टी रहती थी। ना सुबह जल्दी उठने का झंझट और ना दोपहर बाद तक कोई ट्यूशन व्यूशन। 10 बजे आराम से खाना खाकर गए और वहाँ मिड डे मील कुछ मिला और वापस आए, फिर खेलने निकल गए। लेकिन उस समय के शिक्षकों की मुझे एक बात जो याद आती है कि गांव से थोड़ा सा बाहर स्कूल था और वो टेबल के ऊपर जो टेबल्स हैं, पहाड़े हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे हमारे टीचर लिख दिया करते थे और एक समझदार सा बच्चा, होशियार बच्चा खड़ा होकर जोर से बोलता था। पूरा स्कूल उसे दोहराता था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6। जी सर। और मुझे लगता है पूरा गांव शायद उसको सुनता होगा कि आज पहाड़े वहाँ हो रहे हैं। तो अनकॉन्शियसली जो थी हमारी वो जो नींव थी बहुत स्ट्रांग हुई, बहुत मजबूत हुई। और जैसा मैंने कहा कि उस समय फिजिकल पनिशमेंट, टीचर ने झापड़ मार दिया, ये कर दिया, बच्चे ये कहा करते थे कि सर जो भी शिकायत है यहीं पीट लीजिए, घर पे मत बताइए, घर वाले ज्यादा पीटेंगे। तो इस प्रकार का फिर मेरा वो था। फिर घर वालों को लगा कि अच्छी शिक्षा के लिए इसको जरा बाहर भेजा जाए, तो मुझे उन्होंने मेरे मामा के यहाँ भेज दिया। वहाँ भी मैंने सरकारी स्कूल में ही एडमिशन मुझे हुआ आर्थिक स्थिति की वजह से। लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि सरकारी स्कूल में कुछ वहाँ खराबी है। 8वीं तक हम लोग टाटपट्टी पर बैठते रहे, बढ़िया दिन वो रहे हमारे। 9th क्लास में आके पहली बार हमको टेबल कुर्सी पे बैठने को मिला, तो हम बड़े कूदते हुए से घर पर आए कि कल से हम टेबल कुर्सी पे बैठेंगे, टेबल कुर्सी पे बैठेंगे और फुल पैंट पहनेंगे। उस समय तो हाफ पैंट 8 तक हम लोग पहन के जाया करते थे। तो ये बड़ा ही अच्छा वो रहा हमारा। शिक्षक भी बहुत मतलब कभी ये लगा नहीं कुछ विशेष करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरह से जिसे कहा ना, एक फ्लो था, बड़ा आसान सा फ्लो था और ये चलता रहता था। और 10th तक तो हमको कभी लगा भी नहीं कि विशेष रूप से हम कुछ प्रयास कर रहे हैं या पढ़ने का या किसी चीज का। तो स्कूल गए, वहां पढ़े, थोड़ा बहुत होमवर्क दिया, आके फेयर कॉपी में लिख लिया, रफ कॉपी से उसको उतार लिया, एक प्रश्न लिखे लाल स्याही से, उत्तर लिखे नीली स्याही से। हाँ। और कभी टाइम और टेबल आ गया तो लाइन खींचे बढ़िया थे। उसको सजा, हाँ, और बढ़िया सजा सजा के टाइम टेबल बनाया। इधर दिन सोमवार मंगलवार बुधवार, इधर दिनांक और फिर विषय। और वो सब उस पीढ़ी के जो 80 के आसपास, 70-80 के आसपास की जो पीढ़ी है वो जानती है। तो वो सब मजेदार था। तो ऐसा सामान्य सा कुछ विशेष उसमें हुआ। गलती करने से डर लगता था क्योंकि नो मर्सी था। हाँ, वो उसका तो कोई चांस ही नहीं था। तभी शिकायत घर और में बच्चे ना जानते जाए। थे, हाँ, बच्चे जानते थे कि कुटेंगे, उनको मालूम है। ज्यादा उस समय एक्सप्लेनेशन और क्या वो डिटेक्टिव गिरी नहीं हुआ करती थी। उनको लगा कि ऐसी गलती है तो उन्होंने रसीद दिया, बस खत्म। और वो देन एंड देयर मामला खत्म, बच्चा भी खुश, सामने वाला भी खुश, सब खुश। बिल्कुल सर। और घर में गई तो डबल पिटाई। हाँ, घर में नहीं बताना बोले। बिल्कुल, क्योंकि घर में भी मर्सी नहीं था, वहां पर भी पेरेंट्स भी टीचर्स गलत है ये कोई बोलता ही नहीं था सर। अगर हाँ, मार नहीं, पड़ी वो है तो तो आप लोग गलत हो। इसीलिए बच्चे बड़े स्ट्रांग उस समय रहा करते थे। बिल्कुल सही बात है।
आज की तारीख में तो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, मगर तभी हम लोगों के पेरेंट्स का भी ये माइंडसेट था कि अगर तुमको मार पड़ी तो तुम ही गलत हो, शिक्षक गलत नहीं है। शिक्षक पे उस समय प्रश्न नहीं कोई करता था, तो मालूम नहीं था, करता और शिक्षकों ने इस बात की गरिमा को बनाए भी रखा था। बनाए रखा, ये सही भी बात। मानना पड़ेगा हमको कि उस ये समय तो के मैं खुद शिक्षकों ने अपनी उस जो गरिमा है उसको हर तरह से निभाया। उनके लिए शिक्षण सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, अधिकतर के लिए। कुछ अपवाद जी, सारी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय के शिक्षकों को मैंने देखा बड़े सिंपल तरीके से, और जब चाहो इजी गोइंग थे। बिल्कुल सर, हमारे उनके मार में भी उनका प्यार था। अगले पल वो भूल भी जाते थे कि उन्होंने हमको पीटा भी था करके। बिल्कुल। और जैसे कि पिछले सेशन में हमने हमारे पाल सर से जब एक सेशन लिया था, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षक का मार या बड़ों का मार जो है वो कुम्हार के मार की तरह होता है, जिससे घड़ा जो है वो मजबूत भी होता है और शेप भी आती है उसमें। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। सर अभी लाइव सेशन में काफी सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ में। इसमें हमारे संस्कृत सर भी हैं, राधे श्याम शर्मा सर, जो हमको संस्कृत पढ़ाया करते थे केवी करंजा में ही। साथ में स्टूडेंट्स हैं जिसमें जी पद्मजा है, आप मिल चुके हैं उससे, हमारे ही जी, स्टूडेंट्स हैं। और सबने हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू करके विश किया है सर, आप हमारे सभी को सारे भी टीचर्स को। ढेरों बधाइयाँ। और शिक्षक का पद तो ऐसा है जिसे कहा जाए कि ये एक पद है, लोग बदलते रहते हैं। कल हम पढ़ रहे थे, कोई पढ़ा रहा था, आज आप लोग शायद नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तो उसी जगह आ गए, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सनातन परंपरा है और ये चलती रहेगी। तो जी सभी को मेरी हमारी ओर से भी, वर्तमान केवी करंजा के स्टाफ की ओर से भी सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सर, हमारे सारे टीचर्स हैं, पत्तार सर हैं और मंजू शर्मा मैडम है, अरुणा भल्ला मैडम जुड़ चुकी हैं सर हमारे साथ। सभी को नमस्कार। जी सर। तो सर उन्होंने लिखा है गुड इवनिंग मिस्टर सांभारिया एंड हेमलता। नमस्कार। के साथ में स्टूडेंट्स हैं, वर्षा कुड़तरकर, ये हमारे असाइन के सब एक आधा साल आगे पीछे के बैचेस के हैं। वर्षा है जी और शर्मा सर, सचदेवा मैडम भी लाइव हैं, जिन्होंने अभी एक ट्रिब्यूट वाला मैसेज दिया था। शी इज बेस्ड इन यूके। तो सर इसके बाद हम अपने स्वाति मैडम से भी बात करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि उनके बचपन में उनके यादें क्या हैं स्कूल डेज की। हाँ, मैं अपना बचपन याद करना चाहूँगी। वैसे मैं भी छोटे गांव में ही पढ़ी हूँ और मेरे पापा भी टीचर थे, अभी रिटायर्ड लाइफ है। मम्मी भी मेरी जो अभी आजकल हम जिसे केजी कहते हैं, बाल मंदिर कहते हैं, कहते थे उस समय में, तो वहाँ पढ़ाती थी। तो मतलब हम इकट्ठा ही मतलब बाल मंदिर जाया करते थे और मेरे दिन भी ऐसे मजेदार बीते हैं। गांव की जो विद्या विहार, अभी मैं द्वारका से हूँ। हाँ, एक बार मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों ने द्वारका का नाम सुना है। तो जहाँ जगत मंदिर है जो द्वारकाधीश जी का, वहाँ मेरा बचपन बीता है। और वहाँ की सारी स्कूल में जो जानी मानी कही जाए ऐसी तीनों स्कूल में मैंने पढ़ लिया। जो एक गर्ल्स हाई स्कूल है, पीवीएम गर्ल्स हाई स्कूल, और मेरे पिताजी जहाँ पढ़ाते थे एनडीएच हाई स्कूल में, सभी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। और सारे टीचर बहुत प्यार करते थे। मतलब मुझे लगता है कि मारना वगैरह हमारे समय में इतना, या तो लड़कियों को नहीं मारते होंगे, ये भी हो सकता है। और सारे सभी शिक्षक, और मुझे आज भी मेरे क्लास 1 के शिक्षक जो थे वो मुझे याद है। हमारे समय में अभी ऐसा नहीं था। और वो एक जेंट्स टीचर थे, प्रभुदास सर जिनका नाम था। लेकिन बारिश के दिनों में जो बिजली कड़कती है उसे सुन के छोटे बच्चे बहुत डर जाते थे। मुझे आज वही याद आ रहा है कि उस समय में भी इतने सारे बच्चों में उन्होंने पता कर लिया कि हाँ, ये बच्ची डर रही है, और तुरंत से बताया था कि इसको बहुत डर लग रहा है, या उसे घर भेज दिया जाए, या उसके पास परमानेंट किसी को बिठा दिया जाए, किसी बड़े को, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। तो क्लास 1, क्लास 2 में कुसुम बहन हमें पढ़ाती थी, क्लास 3 में चंद्रिका बहन, क्लास 4 में जितेंद्र सर, और उसके बाद में गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने लगी। तो वहाँ भी सभी हमारे शिक्षक बहुत प्यार करते थे। आज भी मुझे मेरे ड्राइंग टीचर चित्रकाम जो सिखाते थे वो मुझे अभी भी याद है। स्वार सर थे हमारे, और हमारी पीईटी की एक मैडम थी कैलाश बेन,
और वो भी मुझे याद है। अभी तो नहीं रही मैम, सर भी नहीं है अभी, बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे सारे सभी लोग याद है। और आज भी मैं जाती हूँ द्वारका तो उन स्कूल के ग्राउंड में एक बार टहलने का मेरा बहुत मन करता है कि जहाँ हम खेले, जहाँ हमने एक्सरसाइज की और जिस स्कूल में हमने अपना बचपन बिताया, बहुत मतलब मीठे दिन लगते थे, ऐसा लगता है। उसके बाद मैंने कॉलेज भी वहीं से पढ़ी है, तो जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे वो भी अभी याद है, मेरा बीएड भी वहीं। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ शारदा मठ जो है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, श्री स्वरूपानंद जी, तो वो जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के हित में बहुत सारे निर्णय लेते थे और हमसे बहुत अच्छे से बात करते थे कि आपको क्या तकलीफ है, या बच्ची पढ़ रही है तो उसको क्या सुविधा चाहिए। इस प्रकार की बहुत हमारे हित की बात वो हमारे साथ किया करते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि इतने जो ज्यादातर ये प्रसिद्ध लोग हैं वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन वो भी हमारी बात सुनते थे, ये हमें बहुत अच्छी बात लगती थी। सही बात है। तो मैडम शायद वहीं से इम्प्रेस होके आपने संस्कृत टीचर को ही अपना हाँ, वहीं से इम्प्रेस होके सब्जेक्ट मुझे संस्कृत में तब से बहुत लगा हुआ कि यहाँ सुविधा भी है और ये बहुत अच्छा विषय है करके। जी मैडम, एक्चुअली टीचर्स बहुत कंसर्न हुआ करते थे, ये बात हम लोग अपने टीचर्स में भी पाते हैं। यहाँ तक कि आज भी ऐसा नहीं है कि टीचर्स कंसर्न नहीं है, ये बात और है कि आज हम स्टूडेंट्स नहीं है, आज हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें भी वो दिखता है कंसर्न। वक्त बदल रहा है लेकिन टीचर्स की भावनाएं नहीं बदली है अभी तक अपने प्रोफेशन के प्रति। मैडम मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे और व्यूअर्स जुड़े हैं अभी। एक संतोष गिडी हैं तो वो सबको गुड इवनिंग विश कर रहे हैं। हमारे फिजिक्स के सर हैं किरण सालुंके सर, और उन्होंने भी सभी टीचर्स को विश किया है, गुड इवनिंग कहा है, केवी स्टाफ को हैप्पी हमारी ओर टीचर्स से डे भी विश किया है। ढेर शुभकामना, धन्यवाद। जी मैम। तो मैडम आप जो अभी आपने शेयर किए एक्सपीरियंस, ऐसे एक्सपीरियंसेस हम और भी टीचर से सुनते हैं। अभी हम ऋतु मिश्रा मैडम को बुलाएंगे, ठीक है? तो ऋतु मिश्रा मैडम। हाँ, चलिए आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो हूँ, मैं भी अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी केवी से ही पढ़ा हुआ है, मतलब क्लास फर्स्ट। मेरे पापा जो थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वर्क किया करते थे जबलपुर में। तो मैंने जो अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया है, मैं भी केवी प्रोडक्ट हूँ, मतलब क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक मैंने भी केवी में ही पढ़ा है। तो केवी का जो कल्चर है उससे मैं बचपन से ही, मतलब मुझे जाना पहचाना सा कल्चर है। केवी में क्या किस तरीके की प्रेयर होती है, क्या होता है, सब कुछ। तो मुझे भी आज भी जो कुछ टीचर्स हैं मेरे, जो कि मुझे आज भी याद है, उनमें से कुछ हैं जो कि अभी भी वर्किंग है, मतलब अभी भी मुझसे जब वो मिलते हैं तो उनसे मिलकर मैं जब शेयर करती हूँ अपनी बातें, तो उनमें एक है जैसे कि राधा सुब्रमण्यम मैडम है। उन्होंने मुझे 12th तक पढ़ाया है। उन्होंने मुझे 12th तक, 11th 12th में उन्होंने मुझे जबलपुर में पढ़ाया। और अभी एट प्रेजेंट एक बार मैं जब वहां पहुंची हूँ ZIT में कोर्स करने के लिए, रिसोर्स, तो जब मैंने उनको वहां पर देखा एज अ रिसोर्स पर्सन, तो उनको देखकर मेरी जो खुशी थी वो, मतलब उसकी सीमा ही नहीं रही। क्योंकि उन्होंने, मतलब वो ही मेरे लिए एक आइडियल टीचर थी। उन्होंने मतलब उनका जब उस समय तो वो बहुत यंग थी जब हम लोगों को वो पढ़ाया करती थी 11th 12th में। तो जैसे बीइंग अ गर्ल एट दैट पर्टिकुलर एज ना, वी आर फैसिनेटेड टुवर्ड्स हर ड्रेसिंग सेंस, द वे शी यूज्ड टू कम टू क्लास, द वे शी यूज्ड टू डिलीवर द लेक्चर, ऑल सच थिंग्स ना, दे मेक्स अस, मतलब उनको देखने का, सिर्फ सुबह जब हम स्कूल में पहुंचते थे तो हमारा बस ये होता था कि आज देखना है मैडम ने कौन सी साड़ी पहनी है। और जब ठंड के दिन होते थे तो मैडम की जैकेट्स। अभी मैं रिसोर्स जब मैडम से ZIT में मिली तो मैंने बताया, मैडम जैसी आप पहले थी आप बिल्कुल वैसी हैं। अभी भी वो जो फैसिनेशन है आपकी साड़ीज का देखने का, आज भी जब मैं कोर्स के लिए आती हूँ तो आपकी साड़ीज देखकर मैं अभी भी फैसिनेट हो जाती हूँ। और द वे, मतलब उन्होंने जब उनको एक वो भी लिया, लेक्चर भी लिया, तो वो जिस तरीके से पढ़ाया करती थी, मतलब वो आज भी अगर मैं आंख बंद करती हूँ तो वो पूरी पिक्चर मेरे सामने आ जाती है। मैं क्या किया करती थी, जैसे वो मुझे बायो पढ़ाया उन्होंने 11th 12th में, तो बस कुछ नहीं करती थी, घर आती थी, ठंड के दिन हुआ करते थे। मुझे मतलब ये चीज अभी भी याद है, मैंने मैडम से भी ये बात शेयर की थी। मैं, हमारे वहां ना लकड़ी के दरवाजे थे, तो मैं दरवाजा, मेरे रूम का जो स्टडी रूम था उसका दरवाजा बंद करती थी, और चौक वगैरह रहता था घर पे, और घर पे दो जैकेट हुआ करती थी। तो बस मैडम के जैसे वो जैकेट को डाल लेना है, चॉक्स को जेब में डाल लेना है, और बस स्टार्ट कर देना है लिखना। और द वे शी यूज्ड टू डिलीवर, द सेम वे आई यूज्ड टू कॉपी है। और वो करते 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 करते, मतलब वो चीज जो वो एक बार क्लास में पढ़ा देती थी, उसके बाद मुझे वो चीज को दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती।
मतलब अभी भी कांटेक्ट में रहती हूँ, आज ही सुबह मेरी उनसे बात हुई है, वो ZIT में एज अ रिसोर्स पर्सन है। तो और भी केवी के कई टीचर हैं, एक सुषमा बाजपेयी करके मैडम है, वो नागपुर में है। मतलब बीइंग अ केवी स्टूडेंट एंड बीइंग अ केवी टीचर, इट्स अ क्वाइट फीलिंग ऑफ प्राउड वो मेरे में लाता है। मतलब जब प्रेयर होती है, जब ये होता है, तो मैं सब पुराना, जैसे कभी भी समूह गान हो रहा है, आप लोग भी सुनेंगे बहुत सारे, हमारे तो वही चले आ रहे हैं, हिंद देश के निवासी, आता उठबू सारे रात, चेलुविना मुद्दिना मक्कड़े, तो ये सब हमने बचपन में सब सीखे हुए थे। तो जब यहाँ पर आते हैं, तो जब गाते हैं ना, तो वो जो फील है बचपन का फील, वो आ जाता है। और क्लास फर्स्ट के ऐसे ही मेरी, मतलब क्लास फर्स्ट मुझे लगता है सारे बच्चों के लिए एक रिमेम्बरेंस, वहाँ के टीचर्स, क्योंकि जैसे ही हम आते हैं, जैसे ही हम पहुंच जाते हैं क्लास फर्स्ट में, तो केजी के बाद जैसे ही हमें पदार्पण होता है क्लास फर्स्ट में, तो मतलब एक बड़ा सा स्कूल, बड़ा, और वो बच्चे, तो मुझे अभी भी याद है, मतलब अपने टीचर्स, मतलब एक संधू मैडम हुआ करती थी और ऋतु अयंगर मैडम, ये 2 टीचर्स थी हमारे पास। तो संधू मैडम के हम जितने क्लोज थे, ऋतु अयंगर मैडम के हम उतने दूर रहा करते थे। और एक मैथ्स के सर थे, MK शर्मा सर, उन सर का जब भी लेक्चर होता था, तो जैसे अभी है, जैसे हमारे ब्लॉक पीरियड्स होते थे, ब्लॉक पीरियड जिस दिन होता था, और हमारे वहाँ जैसे अभी भी चलता है, सर्कुलेशन चलता है, रोटेशन चलता है सीट्स का, तो जिस दिन वो फर्स्ट सीट पे नंबर आया हमारा, किसी का भी आया, तो हम क्या करते थे उस दिन, गायब, पूरी फर्स्ट रो गायब रहती थी। जिस दिन उनके डबल पीरियड है, पर सारी फर्स्ट रो गायब, उनके डर के मारे। और वो बस उनका एक ही काम था, बस आके पढ़ाते तो बहुत ही अच्छा थे, मतलब मैथ्स के टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से करते थे। बस उनको जो मुझसे एक चीज की मतलब परेशानी थी कि इंक पेन से जब हम लिखते थे तो हाथों में इंक लग जाया करती, तो बस उनके पास कोई काम नहीं था, मैं ऐसे 2 चोटियां करके जाती थी। मेरे पास आते थे, ऋतु शो मी योर हैंड, तो मैं नहीं सर, ठीक है सर, फिर बात करते करते हाथ देख के, और फिर वो पिटाई, मतलब बाल पकड़ के यूं 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 पूरा हिला दिया करते। तो वो सारी मेमोरीज हैं अभी ध्यान में। और टीचर्स हमारे बहुत सारे, मतलब जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है एट प्रेजेंट, बहुत सारे केवीज में हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इसके थ्रू हम फिर से इनके कांटेक्ट में आ गए, तो बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल इस सारे टीचर्स के साथ मिलना, और पुरानी यादें फिर से आती हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैडम। अभी हमारे टीचर्स एक-एक करके जुड़ रहे हैं इस सेशन में। अभी लिली सिद्धार्थन मैडम आई है, जो हमारी बायो मैडम थी। पाल सर आए ओके हैं, जो हमारे यहाँ हम उनको लौह पुरुष कहा करते थे। स्ट्रिक्ट, एकदम ओके रिजिड मैन, स्ट्रॉन्ग, आर पाल सर। और ये भी देख रहे हैं। पद्मजा कह रही है कि मैडम जैसे आप बता रही है ना, हम भी अपने टीचर्स को ऑब्जर्व किया करते थे। हमारे पास हम लिली मैडम के ना इयररिंग्स ऑब्जर्व किया करते थे। वो ओके। ग्राउंड में ऐसे गोल वाले पहनती थी। और नहीं, गर्ल्स हमारी दे आर वंदना हैविंग सक्सेना दिस। मैडम थी। हाँ या वी हैव हाँ दैट हैबिट, इवन पद्मजा इज सेइंग दैट। हमारे जो वंदना मैडम थी, देव मैडम थी, देव मैडम की साड़ी एकदम परफेक्ट। वंदना मैडम हाँ हमेशा कुछ उनके पास, हम लोग देखते नया ही दिखता था उनमें हमेशा हमको। इस तरह से हमारे पास कोलगांवकर मैडम, उनका एक अपना ही, उनकी एक इमेज ही हाँ, अलग थी। मैंने तो उनके, कोलगांवकर हाँ, मैडम उनको की, मैंने भी हाँ, देखा। मैं भी काम वही किया है आपने। 2005, हाँ 2005 से वैसे मैं केवी करंजर से जुड़ी हूँ। उस समय मेरे हस्बैंड के साथ में आई थी, वो यहाँ TGT मैथ्स थे। मैं 2009 से ऑफिशियली जुड़ी हूँ, लेकिन 2005 से 2009 तक बच्चों के साथ कांटेक्ट इसलिए रहा क्योंकि घर पे 10th तक के बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो मतलब मुझे भी बहुत पुराना लॉट 2005 वाला, यहाँ से लेकर बच्चे मुझे भी पहचानते हैं। हाँ, बस वही है। तो मैडम भल्ला मैडम के भी जब सेशन था, तो उनके भी स्टूडेंट्स ने हमको कमेंट भेजा था कि वो मैडम का हर एक मूव ऑब्जर्व करते थे कि मैडम कैसे Yes. पढ़ाती हैं। और उन्होंने एडमिट भी किया इस बात को। मेरा भाई खुद भी मैडम का स्टूडेंट रहा है, तो वो भी काफी इम्प्रेस था। भल्ला मैडम ने यहाँ पे लिखा है कि आई स्टिल फेवर परफ्यूम इवन नाउ व्हेन आई गो आउट। उनका वो एक था, साइड से जाती थी ना, तो एक खुशबू भी होती थी उनकी अलग इट सी, गिव्स अ पहचान में कॉन्फिडेंस। आती थी। हाँ, या एक कॉन्फिडेंस भी आता है। इफ बिल्कुल। यू आर ड्रेस्ड परफेक्टली, देन इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अब हाँ बच्चों मैडम, को ना तो ये अभी सारी चीजें मुझे लगता है बहुत अट्रैक्ट करती हैं इस पर्टिकुलर एज स्पेशली में, लड़कियों को मैडम, स्पेशली लड़कियों को, तभी ना। लड़कियों को। हम लोग प्रेयर में हम्म, भी देखते हैं, टीचर्स सब इकट्ठे खड़े होते हैं, तो कौन सी मैडम ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है, उनके ऊपर कौन सा हाँ कलर जचता है, ये भी हम डिस्कस किया हाँ, करते थे। ये सब है ना, कुछ उनके एक मूव्स चीज की। हर। बिल्कुल। तो ये पद्मजा ने भी लिखा है कि मेनली वंदना मैडम ड्रेसिंग स्टाइल। ओके। तो ये बातें हैं जो हम भी याद करते हैं स्कूल के, अपने स्कूल के बारे में। और हाँ मैडम अभी हम बुलाना चाहेंगे गीता मैडम को। और ओके गीता मैडम से भी उनके स्कूल टाइम के एक्सपीरियंसेस जरूर सुनना चाहेंगे। जी, सभी को मेरा नमस्ते। नमस्कार। और नमस्ते मैम। शिक्षक दिवस की सभी जितने भी हमारे यहाँ पे टीचर जुड़े हुए हैं, हमारे लिली सिद्धार्थन मैडम एक प्रिंसिपल के रूप में मैंने उन्हें देखा है, कुछ एक इंस्पेक्शंस में उनको देखा है, और अरुणा मैडम हमारी DC रही हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बात करूं अगर अपने बचपन की, तो जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि गांव के जैसे स्कूल हुआ करते थे। मैं गांव में तो नहीं थी, पंजाब के एक छोटे से शहर होशियारपुर से हूं मैं। और मेरा बचपन भी प्राइमरी का स्कूल जो था बिल्कुल घर के पीछे प्राइमरी स्कूल था। तो प्राइमरी स्कूल में जब रिसेस होती थी तो हम घर आ जाया करते थे। उस समय ऐसा नहीं था कि आपको बंदिश है, क्योंकि बच्चों पर काफी बच्चे इनोसेंट होते थे। किसी भी प्रकार का ऐसा इनडिसिप्लिन नहीं होता था कि आप बच्चों को एकदम छोड़ ही नहीं सकते। तो उसके बाद फिर गर्ल्स स्कूल में गई हूँ मैं, और गर्ल्स स्कूल में भी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, और वहां पर हमारी एक शिक्षिका हुआ करती थी, रमा शर्मा। कक्षा 9वीं में वो आई थी हमें पढ़ाने के लिए, हिंदी पढ़ाती थी। और मैडम इतनी सुंदर थी, और पंजाब में फूल वगैरह बालों में लगाने की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन मैडम के बालों में रोज एक गुलाब लगा होता था। और वो देखकर सारी गर्ल्स एकदम खिल उठती थी कि मैडम कितने अच्छे से ड्रेसअप होके आती हैं, मैडम को ये गुलाब कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है, लेकिन वो मैडम का एक जो इफेक्ट था हमारे ऊपर, एक इम्पैक्ट जो उन्होंने छोड़ दिया था, हिंदी के प्रति लगाव जो था, वो रमा मैडम ने लगाया था। इसके अलावा मुझे याद आती हैं, हमारी एसएसटी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती थी शीतल कौर मैडम। और शीतल कौर मैडम जो थी वो भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती थी, और बिल्डअप बिल्कुल पंजाबियों वाला, कौर है तो पंजाबियों वाला, सिखों वाली बात उनमें थी। मुझे याद है हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट कर लिया था, कहीं दूसरी जगह पर चले गए थे, और मेरा स्कूल मुझे वहां से बहुत दूर पड़ता था। मेरी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, शीतल मैडम मेरी क्लास टीचर हुआ करती थी, उनसे कहा कि आप इसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना दीजिए, हम इसको पास वाले स्कूल में ले जाना चाहते हैं। तो अभी भी याद आता है शीतल मैडम की वो बात के दूर से मैं भी वहीं से आती हूँ, मैं इसको रोज अपने साथ लेके आऊंगी और साथ में लेके जाऊंगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल टीसी नहीं होने दूंगी। बोलती थी मेरी क्लास की इस बच्ची को मैं तो कभी भी नहीं छोड़ सकती। 10th तक तो बोलती थी नाम मत लीजिए कि गीता मेरी क्लास से बाहर जाएगी। और वो मैडम ऐसी थी कि उनकी चाबी जो अलमारी की हुआ करती थी मेरे पास हुआ करती थी। एंड यू वोंट बिलीव, शी वाज सो कंफ्यूज्ड इन मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड पूनम। वो मुझे पूनम कहती थी और मैं पूनम को गीता कहती थी। और पूरे 10th तक ऐसे ही निकल गया। मैडम को मेरा नाम गीता याद नहीं हुआ और उसका नाम पूनम याद नहीं हुआ, लेकिन अंदर से कहीं भी किसी तरह की कोई खलिश नहीं आती थी कि मैडम को मेरा नाम याद नहीं है। हम दोनों के चेहरे मिलते जुलते थे। मैडम बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, गीता है कि पूनम है। तो एक साइंस टीचर हुआ करती थी, सुरेंद्र कौर मैडम। शी वाज अमेजिंग टीचर। हमारी क्लास 11th और 12th में जो बच्चे अभी जो प्रिज्म से, स्लैब से जो भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, वो मैडम ने हमें 8th में 9th में करवाए थे, और इतना अच्छे से पढ़ाती थी। हर बात को वो घर से जोड़ के पढ़ाती थी, साइंस इन एप्लीकेशन बताती थी, हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताती थी। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इस समय वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है हमारे माइंड पे, अभी भी मैं अपनी बेटी को भी देखती हूँ, कुछ समझाना होता है तो उनका जो दिया हुआ ज्ञान है वो मेरे आज भी दिमाग में बिल्कुल एक अमिट छाप की तरह पड़ा हुआ है। तो टीचर्स, युग बदल जाते हैं, लेकिन टीचर्स की शाश्वत सत्ता और उनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे जो पड़ता है वो कभी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं। आज हम जहाँ भी खड़े हैं, जो भी है, जितने योग्य हैं, वो सारा का सारा श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी हर बार यही कहते हैं कि आज हम जो हैं, जहाँ हैं और जैसे भी हैं, जितने कामयाबी पर पहुंचे हैं, इसके पीछे हमारे शिक्षकों का ही हाथ है। हमारे जमाने में कहाँ ये गाइड्स और ये गूगल ये सब हुआ करता था। टीचर भी पीछे पढ़ के एक टॉपिक हम लोगों के दिमाग में डालते थे। और मैं कहूँ तो हम लोग काफी लकी थे, हम लोगों को टीचर्स इतने एफिशिएंट मिले कि जिन्होंने टेक्स्ट बुक कभी छुआ नहीं। चाहे वो लिली सिद्धार्थन मैडम हो, चाहे वो बरई सर हो, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नाइस टू सी यू ऑल। बरई सर नमस्कार, बरई सर को मैं जानती हूँ। अच्छा, फिर चाहे वो किरण सर हो, उनका यूनिक स्टाइल हुआ करता था, चेयर के पास खड़े होना, एक पैर चेयर पे रखना है और अपना शुरू करना है। एंड वी यूज्ड टू बी लाइक, कभी यहाँ वहाँ हमने ध्यान भी नहीं भटकाया अपना। इस तरह से हमारी पढ़ाई चलती रही। और बाकी मैडम आज हैं हम, उन्हीं की मेहनत का फल है। बिल्कुल, उस समय अंकों के लिए भी किसी तरह की कोई मारामारी नहीं हुआ करती थी। मुझे अभी भी याद है,
10वीं में जब 73% मार्क्स आ गए तो सारी दुनिया को लग रहा था अच्छा इतने मार्क्स, आज की तरह 93, 94 या 98% तो नहीं 90 से आते नीचे थे आओ तो पहले। इंसल्टिंग है आज की तारीख में। हाँ वही, वो सब नहीं था जो जी नहीं, बिल्कुल दिया नहीं। जाता था, बहुत गहराई से दिया जाता था, जी, केवल मार्क्स ओरिएंटेड टीचिंग और लर्निंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, नॉलेज ओरिएंटेड थे। नॉलेज प्लस वी ओरिएंटेड, लर्न सो मच, हम ये सो कह सकते हैं मच, कि हमको संस्कार भी मिले टीचर्स से। बिल्कुल बिल्कुल सही पूरी तरह से। और गलत के बीच का फर्क जो है वो हमारे टीचर्स ने बताया। तो हम अपने सभी टीचर्स से के बचपन के बारे में जान चुके हैं। अब हम इस धन्यवाद सेशन मैम। में अरुणा मैडम का जो मैसेज मुझे दिख रहा है, मैडम ने बोला है गीता ऑलवेज enjoyed hearing you speak. थैंक यू सो मच मैम, इवन आई एम ब्लेस्ड कि आप मेरी डीसी रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। तो मैडम अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हमारे पास मैसेज है हमारे एक बहुत ही खास टीचर का, हमारे टीचर्स डे, सारे टीचर्स के लिए टीचर्स डे के ओकेशन पे। तो हम पहले उनका मैसेज सुनते हैं। अरुणा जी बल्ला मैडम जिसकी आप बात कर रही हैं, उन्होंने हमारे सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है टीचर्स डे के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं, तो उसके बाद हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जी सुप्रभात। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं। A teacher builds a nation, and we as teachers are proud to see our students working and doing so well, grown up and being as the pillars of the country. I would like to specially give my greetings to Principal Sambaria of KV Karanja and his team for the wonderful way in which they are bringing up the school. Also, my best wishes to all the dear students of the KVS alumni who have got together to bring all the teachers and the students together and have made a platform where everyone are remembering the wonderful times at Karanja. बल्ला मैडम थी सर, हमारी अपनी सबकी थैंक यू प्यारी थैंक यू। मैडम। बल्ला मैडम के साथ मैंने अच्छा काम किया, काफी दिन काम किया, और व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मैंने उनकी खास बात जो देखी थी, जी जरा उनको आप लोगों ने एज ए टीचर देखा, हमने तो एज ए डीसी देखा उनको, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन जो एक बार यदि वो आप पे विश्वास करती हैं तो आपके लिए वो फिर कुछ भी करेंगी, और बिल्कुल। उनका बहुत साथ हमको मिला। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी और बताते हुए मुझे खुशी होती है कि आज के हमारे सेशन में हमारी जो प्रिंसिपल थी 86 में, जिन्होंने हमको ज्वाइन किया था, मिसेस सुमित्रा केतकर मैडम, वो भी ज्वाइन हो चुकी हैं हमारे सेशन में। भी उनको बहुत अच्छा। रिटायर हो चुकी हैं, वो अपने घर में रहती हैं गांव में। बट सर, केतकर मैडम के बारे में सभी टीचर्स ऑलरेडी कह चुके हैं, और मैं भी ये कहना ज़रूर चाहूँगी इस सेशन में कि ये वो प्रिंसिपल रही हैं जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय करंजा को करंजा द्वीप से बाहर निकाल के मुंबई के रीजन में कॉम्पिटिटिव लेवल पे लाके खड़ा किया। करंजा सिर्फ करंजा तक ही लिमिटेड था सर। ये मैडम थी जिन्होंने करंजा के स्टूडेंट्स को कंपटीशन के लिए तैयार कराया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपकी एग्जीबिशंस हो। शी मेड हस स्टैंड। आप जाके खड़े तो हो, कॉम्पीट नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे। केवी करंजा की पहचान उन्होंने मुंबई के रीजन के सभी स्कूल्स के बीच में बनाई। यहाँ तक कि ये स्कूल में भी उन्होंने कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए। मुंबई के स्कूल के बच्चे, एनसीसी के और स्काउट्स के बच्चे आके यहाँ कैंप्स अरेंज कराए, ताकि पता चले मुंबई वालों को भी कि केवी करंजा भी है और उसका भी अपना एक अस्तित्व है। तो थैंक यू सो मच केतकर मैडम फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन। इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं सर। बरई सर हैं, लिली सिद्धार्थन मैडम है, केतकर मैडम जी, सभी ने गुड इवनिंग कहा है और सभी ने शिक्षक दिवस के लिए आप सभी को ढेरों बधाइयां दी है सर। एक सचदेवा बार मैडम फिर से हमारे सभी को, शिक्षक हैं। सभी भूतपूर्व जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सबको वर्तमान परिवार के सदस्यों या उनके कनिष्ठ सदस्यों की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। सर, ये परिवार तो एक ही है हम सबका, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट मिला है हमारे प्रिंसिपल सर और उनकी पूरी टीम को, आज के हमारे गेस्ट को,
किरण सालुंके सर की तरफ से कि टुडे ये सारे टीचर्स जो हैं काफ़ी फ्लुएंट हैं, दे आर टॉकिंग वेरी नाइसली। सो थैंक यू सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सर आगे बढ़ते हैं। आई वुड अच्छा, शर्मा सर हैं हमारे, जो हमारे संस्कृत के टीचर हुआ करते थे। उन्होंने केवी के स्टाफ रूम में हम सब लोगों के लिए एक बहुत सुंदर मंच तैयार किया है, हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हमने एक एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा केवी के स्टाफ रूम करके, जिसमें हमारे सारे टीचर्स शामिल हैं। तो उन्होंने सर थैंक यू सो मच, आपने ये मेंशन किया कि स्टाफ रूम, जी स्टाफ रूम हमने बनाया है ताकि हमें भी पता चले कि हमारे टीचर्स कहाँ पर हैं। हम इकट्ठे होते हैं सर, गुड मॉर्निंग से हमारी शुरुआत होती है केवी के स्टाफ रूम में। हमारे सारे 35 ईयर्स पुराने टीचर्स हमारे स्टाफ रूम में हैं आज। सो वी आर वेरी लकी एंड थैंक गॉड कि वी आर थ्रू दिस ये सेशंस के जरिए हम सभी टीचर्स के साथ मिल सके और जुड़ सके। तो ये शर्मा सर ने हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट भेजा है। हाँ, केतकर मैडम के लिए भल्ला मैडम ने भी लिखा है कि आई एम लेडी ऑफ करंजा। चलिए, जी, काफी बहुत स्ट्रिक्ट, मगर उतनी ही कहते हैं ना नारियल के जैसे, बाहर से कड़क और अंदर से उतनी ही कोमल। वेरी आई मीन शी वाज अ लेडी ऑफ प्रिंसिपल्स। ये केतकर मैडम क्या बाहर से आया करती थी क्या, मुंबई से आती थी? जी, मुंबई से दादर से आती थी वो। और सर बल्ला उनको मैडम हम ने एक लोग बार ऑब्जर्व जिक्र अनौपचारिक किया रूप था। से बात करते करते मुझे बड़ी मजेदार बातें उनकी सुनाई थी कि वो भी जी आती थी और वो लोग भी बोर्ड से आया करते थे। जी सर। ओके, तो सर अभी अगले अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम एक टास्क देंगे हमारे सभी टीचर्स को जी। और उनको वो करना है, टास्क पूरा करना है। हमारे बीच में हम व्यूअर्स को बता दें कि सचिन सर जो फिलहाल केवी करंजा में म्यूजिक टीचर के तौर पे हैं, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि उनके कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। जैसे ही उनका इश्यू सॉल्व होगा हम उनको ज़रूर अपने सेशन में ज्वाइन करा लेंगे। फिलहाल सर अगर टास्क की बात की जाए तो एक छोटा सा टास्क मैं आपके लिए भी देती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर पोजीशन, डिग्निटी, मेंटेनिंग अ डिग्निटी, कि सर आप आज इस प्रोफेशन में हैं, टीचिंग से आप प्रिंसिपल तक बने हैं। अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होते तो वो कौन सा प्रोफेशन है जो आपने चुना होता? अगर आप शिक्षक और प्रिंसिपल नहीं होते तो आप क्या चाहते, क्या बनना चाहते? ये मतलब बड़ा ही वैसा विषय है, क्योंकि जितनी करियर काउंसलिंग और गाइडेंस आज के बच्चों को उपलब्ध है उतनी हमारे जमाने में नहीं। और मैं तो अपने माता पिता से दूर रहता था, वहाँ पे बताने वाला भी था कि 10th के बाद आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। 10th था सरकारी, तो 10वीं के बाद उसमें हम लोग सब्जेक्ट लेते थे। 10th क्लास में फर्स्ट क्लास आई तो जैसा कि 1992 के आसपास ये एक नैरेटिव था कि फर्स्ट क्लास यदि बच्चा आया है तो मतलब बहुत होशियार है, और साथ के पढ़ने वाले टीचर्स का भी लगभग यही मानना था। तो फॉर्म स्कूल से लेकर आए, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, भर के जमा करना है, लास्ट डेट आ रही है, बहुत सोचते सोचते, और फिर मुझे मेडिकल फील्ड ठीक रहेगा, डॉक्टर बनना ठीक है, मुझे अपना ऐसा खुद के ऊपर लगा। तो घर से मैंने उसमें बायोलॉजी भरा, और जब मैं जमा करने के लिए गया तो जो हमारे टीचर थे जी सर, मिस्टर जैन हुआ करते थे, वो हमको टीजीटी साइंस थे, वो तो साइंस पढ़ाते थे। तो उन्होंने जमा करते मेरा फॉर्म देखा और कहते कि संजीव तुम तो होशियार हो, कहाँ बायोलॉजी ले रहे हो, मैथ्स ले लो। मतलब ये उस समय धारणा थी कि होशियार बच्चा है तो मैथ्स लेगा। मैं भी इतना कंफ्यूज था, तो मैंने कि नहीं सर, क्या कहते हैं, ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं उसमें काट के मैथ्स देता हूँ। मैंने वहीं काटा पेन से और उसमें, फिर वो बोले नहीं नहीं इस वजह से मत लो कि मैंने कहा, मैंने कि सर अब लिख दिया तो लिख दिया। जैसे कहते हैं ना में आप निर्णय करते हैं और वो सारी ताउम्र आपके साथ चलता है। बिल्कुल तो वो पल मुझे आज भी याद है, और मैंने कहा सर आपका होता तो मैं सिर्फ एक और थोड़ा सा चिकित्सा के क्षेत्र वॉइस में ही ब्रेक हो काम रहा है कर सर। सकता था, जी क्योंकि बाकी और किस मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
सर थोड़ा सा नैगिंग हो रहा, मतलब ब्रेक हो रही है आवाज। अच्छा, अभी ठीक है? ये कुछ हाँ नेटवर्क आ प्लीज। जा रहा है या? जी जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं शिक्षक नहीं होता तो मैं एक मेडिकल ही एकमात्र क्षेत्र ऐसा है, चिकित्सा ही एकमात्र जहां मैं कर सकता था, क्योंकि मुझे कभी भी काम वो क्लिनिकल काम शायद मुझे कभी पसंद नहीं आया कि जहां आप अपने केबिन में बैठे रहें और फाइल्स के साथ में आप काम करते रहें या डाटा के साथ काम करते रहें या निर्जीव चीजों के साथ काम करते रहें। शायद मशीनों के साथ भी मैं इंजीनियर बनता तो भी शायद मैं काम नहीं कर पाता। ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आप सजीव लोगों के साथ बात करते हैं रोज। जो 78 बॉर्न हैं जो लोग, उनसे जब मिलता हूं तो कभी दिखता नहीं है। तो जब बोलते हैं कि, तो मैं कहता हूं कि शिक्षकों के ऊपर उम्र का असर ज्यादा इसलिए जल्दी नहीं दिखता है क्योंकि वो यंग बच्चों के साथ में रहते हैं। और बच्चों के साथ आप जैसे लोगों की संगत करेंगे वैसे ही आप देंगे। बिल्कुल। आप बहुत अधिक निराशावादी लोगों के साथ में 1 महीने रह लीजिए तो आपकी सोच वैसी बन जाएगी। आप बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बात करिए दिल से, जी सर। तो वो जी आपके सर। ऊपर दिखेगा। आपकी उम्र जल्दी नहीं दिखेगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम रोज डेड फाइल्स हमारे पास कम रहती हैं। सर कुछ नेटवर्क इशू आज आ रहा करंजा का थोड़ा सा नेटवर्क स्टेबल नहीं है। है। जी जी सर। हाँ, थोड़ा सा बार बार ये नेट आ जा रहा है, ब्रॉडबैंड भी आज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर नहीं होता तो फिर मैं मेडिकल फील्ड में ही काम कर पाता। बिल्कुल। तो भल्ला मैडम ने सर आपके लिए सही कहा था कि संजीव सर एक जगह पे बैठ नहीं सकते। ही सो एनर्जेटिक दैट एक जगह पे बैठना शायद, तो उन्होंने अपने सेशन में कहा भी था, जब मैंने उनसे कहा कि संजीव सर जुड़ चुके हैं हमारे सेशन में, तो उन्होंने कहा था मुझसे कि हिम्मता, संजीव सर कभी एक जगह पे बैठ नहीं सकते। ही इज फुल ऑफ एनर्जी, ही इज डूइंग सम और अदर थिंग। सो इट, आपने आज मतलब एग्री किया कि वाकई में आप जी एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं। तो हाँ, वो ऑब्वियसली क्लरिकल जॉब तो जी। हाँ, बंद केबिन में बैठना और ये सब, जब तक आप लोगों से, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं, शिक्षा का हो या चिकित्सा का हो, और भी होंगे, शायद मुझे जी जानकारी नहीं है, जहां आप जब एक टीचर क्लास के अंदर है तो वो सब कुछ उसके ऊपर है। जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास आ गया तो जी अपना सब कुछ उसने उसके हाथ में सौंप दिया। बिल्कुल वो उसको सही बात। जो सलाह देगा, जो दवाई देगा, वो उसके लिए, इसलिए कहते हैं तो वो भगवान के समान है। अगर उसने बिल्कुल ऑपरेशन करके उसका पेट खोल दिया तो अब वही भगवान है। वो चाहेगा तो वो जिंदा भी रहेगा और नहीं चाहेगा तो। ऐसा ही हाल शिक्षक का। वो 40 मिनट जब हम वहां पर हैं, क्लास जी के अंदर हैं, तो कहते हैं कि उस समय शिक्षक राजा है उस अपनी प्रजा का। छोटी सी जो छोटा सा राज्य है उसका, उसमें वो कितना बेहतर वो कर पाता है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जी सर। ये वो एक नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल, मैंने आज भी कहा कि अ, जिस तरह से अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, अ, जी वो कोई भी शिक्षा नीति तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक उसको अपने अंदर नहीं बिठा लें। सिर्फ बिल्कुल पेपर सर। पे पॉलिसी बनाने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। जैसे सरकार ने पहले दहेज विरोधी कानून बनाया और इतना सख्त कानून बनाया कि जी बिना किसी उसके उसमें गिरफ्तारी होती है और उसमें जो अक्यूज है वो सफाई देता है, बाकी सभी जगह इल्जाम लगाने वाला साबित करता है कि इसने किया है, यहाँ जिस पे लगाया वो साबित। लेकिन फिर भी ये बुराई समाज से दूर नहीं हो सकती है क्योंकि समाज ने इसको नहीं अपनाया। उसी तरह से कोई भी एजुकेशन पॉलिसी तब तक नहीं होगी जब तक कि शिक्षक उसको अपना ना ले। जी सही बात सर। तो सर सुन के अच्छा लगा कि आप अगर ये नोबल प्रोफेशन में नहीं होते तो किस एक और नोबल प्रोफेशन आपके दिमाग में था। इवन डॉक्टर जी का प्रोफेशन जो है वो और काफी। देखिए, मैं घर से फॉर्म में वही भरकर भी ले गया था कि मैं बायोलॉजी ही लूंगा। बिल्कुल लेकिन जिसे कहते हैं ना कि प्रारब्ध आपके लिए शायद लिखा होता है कि जी आपको यहाँ नहीं, और उस समय एक छोटा सा धक्का आपको ऐसे रास्ते पे भेज देता है जहाँ बहुत आगे आपको चलना होता है। हाँ
और मुझे उस पे कोई आज भी अपने उस निर्णय पे कोई वो नहीं है, अफसोस नहीं है सर। क्यों होगा सर, इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं आप, यू आर डूइंग सो वेल, जो मिल रहे हैं आपकी तारीफ कर रहे हैं, भला मैडम बिल्कुल खुद आपकी बिल्कुल तारीफ बिल्कुल। करती रही इस प्रोफेशन ने सब कुछ दिया। जी सर। मैं पर्सनली भी कहूँ तो मेरा बेटा आपके स्कूल, अपने इसी स्कूल से 12th पास आउट हुआ है। वो खुद कहता है कि सर बहुत एक्टिव हैं, और हमेशा उनके दिमाग में ये चलता है कि टीचर स्टूडेंट्स को कितना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। उसने मुझे एक एग्जांपल दिया, आज ही बात कर रहे थे हम लोग, तो उसने मुझे बताया कि सर जब आए तो स्कूल में एंटर होते ही अपने यहाँ मिरर है स्कूल में। मैं नहीं जानती सर, ये मुझे मेरे बेटे ने बताया कि मिरर है अपने स्कूल में। स्कूल मिरर मैंने देखा है, लेकिन इंसिडेंट उसने मुझे नरेट किया कि सर ने आते ही पहला टास्क ये दिया कि बच्चे जब भी आते हैं स्कूल में एंटर होते हैं आईना देखते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं। तो बच्चों ने फुल एंथुजियाज्म से उसमें पार्टिसिपेट किया, और आपने पार्टिसिपेशन के लिए उन बच्चों को कुछ प्राइजेस भी दिए। सो दैट शोज योर एक्टिविटीज, यू नो, योर एनर्जी लेवल्स। सो थैंक यू सर कि आप केवी करंजा के उस स्टैंडर्ड को और ऊपर ले जा रहे हैं। सर अभी हम लोग बात करेंगे स्वाति मैडम से, एक टास्क उनको देना है मैंने, और स्वाति मैडम के लिए टास्क ये रहेगा कि आई थिंक या स्वाति मैडम, तो स्वाति मैडम आपके लिए भी हम एक बहुत ही बढ़िया टास्क सोच कर आए हैं कि अच्छा हमारे सर आ गए। सर म्यूजिक सर, नमस्ते सर, वेलकम टू आवर। नमस्ते नमस्ते। हेलो नमस्कार, सॉरी दैट्स ओके सर, टेक्निकली हम समझते हैं, हमारे साथ काफी बार ऐसा होता है। सचिन परदेसी सर, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके नाम के आगे जो आपने ये लगा के रखा है जरा उसको बताएंगे वो क्या है? हाँ, एक्चुअली ये सवाल मुझे मेरे बड़ी बेटी ने भी पूछा था जी। वो है कि उन्हें अभी तक वो साज का मीनिंग मालूम नहीं था। अच्छा साज, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स। एक मिनट, डबल आवाज आ रही है। नहीं सर ठीक है। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ सर आवाज आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी, हाँ एक मिनट जी। ओके, तो हेलो जी सर। जी, एक्चुअली मेरा जब ईमेल बनना था, जो फर्स्ट ईमेल मैंने बनाया था उसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नाम दीजिए जो पहले किसी का ना रहा होगा। तो मैं म्यूजिक फील्ड में तो था ही, तो सच के साथ साज, साज मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सच साज से मेरा सारे ईमेल बने हैं, सच साज gmail.com, सच साज सब पे। तो फिर वहां से तब तो मैं मतलब प्रॉपर इस स्ट्रीम में भी नहीं था उतने अच्छे से, बट एक था कि मेरे नाम के साथ संगीत से जुड़ी कोई निशानी होनी चाहिए हमेशा। आगे जाके पता नहीं मैं म्यूजिक फील्ड में कुछ बन पाऊं भी या नहीं बन पाऊं, कम से कम मेरे नाम के साथ तो जुड़ा रहेगा, ये उसका रीजन है। जुड़ा है आपके नाम के साथ में वो किरण कुमार सालुंके सर, आप जानते हैं उन्हें, आपके कलीग रहे हैं, उन्होंने बताया है कि सचिन बांसुरी वाला। जी 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 शायद वो आपको इस नाम से बुला देते हैं, तो आपके नाम के साथ काफी सारे साज वैसे ही जुड़े हुए हैं। भल्ला मैडम ने आपको हाय कहा है सर, किरण सर आपको हाय कह रहे हैं। थैंक यू। जी सर। तो सर हम स्वाति मैडम के साथ बात कर रहे थे, उनको हम एक टास्क दे रहे थे, और इसके बाद हम आपको भी एक टास्क देंगे, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप पहले हमें दे दीजिए कि आपका स्कूल डेज, आप ये म्यूजिक में कैसे आए सर? हाँ, वो तो बड़ी मतलब रोमांचक कहानी है म्यूजिक प्रोफेशन में आने की, उसको काफी समय लगेगा, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि 6th ऑनवर्ड्स मैं जिस स्कूल में पढ़ा, उस वक्त तो मराठी स्कूल होते थे, मतलब म्यूनिसिपालिटी के, और थोड़ा बहुत प्राइवेट होते थे। तो रविंद्रनाथ विद्यालय करके स्कूल था, वहां पे एक्चुअली म्यूजिक टीचर कोई था नहीं, कोई लैब अटेंडेंट या ऐसे ही पोस्ट पे वो थे, और वो म्यूजिक का सारा काम संभालते थे। तो वहां से म्यूजिक की रुचि जागरूक हुई, और असल में उस वक्त तो मैं 6th या 7th में था। तो उसके बाद फिर पढ़ाई के दौर चले, फिर काफी अलग कहानी है। 10th के बाद मुझे दिल्ली के महर्षि महेश योगी आश्रम का एक एड पेपर में देखने को मिला
घर वाले इस सब बातों के खिलाफ थे, तो मेरा मतलब घर से भागने का पूरा प्लानिंग हो गया था। हेलो। हाँ सर। जी जी जी, लेकिन कहीं से उसकी पिताजी को भनक लग गई, तो फिर मुझे बाइज्जत बरी किया गया, मतलब विदा किया गया घर से। और वहां मैं बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में सीखा हूँ। वहां पे चारों वेदों का शिक्षा दी जाती थी, और उसमें सामवेद के अंतर्गत इस गंधर्व वेद की इसमें संगीत की शिक्षा दी जाती थी, और पूरे पारंपरिक तरीके से दी जाती थी। वहां हमको धोती कुर्ता पहनना पड़ता था, प्याज और ये सब जो तामसी चीजें है वो खाना बिल्कुल मना था। और आम भाषा में आप बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, बिना टेस्ट वाला ही भोजन था। लेकिन संगीत की रुचि होने से वहां, लेकिन ये था कि वहां कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला था, कि कोई ऐसा कोई कागज आपको मिलता कि जिसके भरोसे आप कहीं जाके कोई जॉब अप्लाई करते वगैरह। उनका वही था कि वो वहीं आप रहिए, वहीं गुरु बन जाइए, और वो लोग देश विदेश में आपका प्रोग्राम करवाते थे। किंतु मैं घर में बड़ा होने से, जिम्मेदारी की वजह से, फिर मुझे उसको 2 या 2.5 साल में उस आश्रम को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह दे करके एटलीस्ट मैं आज आप लोगों के सामने एज ए म्यूजिक टीचर हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरा जॉब ऐसा है कि जिसमें मैं जो काम करता हूँ वो भी मेरे पसंद का है। ये काफी कम लोगों को किस्मत में होता है। तो सर हम मैडम को एक टास्क देते हैं जी, और फिर आपको वापस आना पड़ेगा। आपके लिए भी हमने टास्क रखा है एक बहुत बढ़िया सा, प्रिंसिपल सर ने और हमने सोच के रखा है आपके लिए। स्वाति मैडम जी सुन रही। हाँ मैडम, आपके लिए हम चाहते हैं कि देखिए ऑनलाइन टीचिंग जब से शुरू हुई है, मीडिया में काफ़ी कुछ आया है सामने। टीचर्स को लेकर के लोग मजाक भी बनाने लगे हैं, सैलरीज उनको मिल रही हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू टीचर्स पुट बिहाइंड द ऑनलाइन सेशंस, नोबडी वाज अवेयर ऑफ इट देन। अभी हालांकि जागरूकता आई है जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, और कोरोना पीरियड काफ़ी लंबा हो गया तब से। तो मैडम हम जानना चाहेंगे आपसे आपके विचार, तो ये ऑनलाइन टीचिंग के पीछे आप लोग जितना मेहनत करते हैं, और ये जो ऑनलाइन जिस तरह से मीम्स वगैरह बनाए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम इस बारे में? हाँ, ऐसा ऑनलाइन की वजह से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि बच्चों के साथ जुड़े रहने से आपको एकदम यंग होने की फीलिंग आती है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अभी जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं, तब से ऐसे लगता है कि काफी कुछ हम अकेले सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चों के सामने एकदम से प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। तो काफी कुछ हमें बच्चों की कमी लग रही है, बच्चों को भी लगता ही होगा। लेकिन हाँ, मीट वगैरह जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम 24 आवर्स टीचर बन गए अभी। फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, ये हो जाता है। फिर स्क्रीन को देखते देखते, मतलब क्या है, जब क्लास ले रहे हैं तब कुछ काम कर रहे हैं, फिर उनके लिए पीपीटी बनाने का काम होता है और वर्कशीट बनाने का कुछ काम होता है, तो उसमें भी हम स्क्रीन देखते रहते हैं। तो फिजिकली भी आपको मतलब आई स्ट्रेन होना और ये सब परेशानी होती रहती है। मतलब सारे मेरे कलीग्स भी इस बात को एडमिट करेंगे कि हाँ, ये बहुत तकलीफ होती है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि फैमिली लाइफ भी एकदम डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि कभी भी जब बैठो अचानक से किसी का फोन आ जाएगा, पेरेंट्स का। इवन जो 9-10 को हैंडल करते हैं उनको तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई बात करनी है, तो बेचारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, वो 10 बजे ड्यूटी से आएंगे तो उस समय टीचर से बात करेंगे, या फोन ले गए होंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो इस तरह की काफी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। और कभी कभी मतलब इसे अन्यथा न ले, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना अच्छे से पीपीटी प्रिपेयर किया, मीट में समझाया, फिर भी अच्छे से पेरेंट ने कभी इसी समय फोन कर दिया कि मैडम आपने सुबह समझाया, लेकिन उस समय मेरी बेटी नहीं समझ पाई, और अभी हमने फोन स्पीकर पे रखा है, अभी आप 2 मिनट बोल दीजिए। तो ऐसे लगता है कि अरे भैया, इसके लिए फिर पीपीटी प्रिपेयर किया, इसका हमने ये वर्कशीट बना के दिया, इतना हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके समझ में कुछ भी नहीं आया होगा। तो कभी अपने आप के लिए भी लगता है अरे कुछ नहीं समझ में आया। और
जैसे हम बीएड वगैरह में पढ़ते थे तो एक चीज हमें सिखाई जाती थी कि जो एक जगह स्थिर रह के खड़ा रह के जो टीचर पढ़ाता है वो अच्छा टीचर नहीं है। मतलब घूम घूम के एक एक बच्चे के पास जा जाके आप देखो कि उस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो काफी हमें भी ऐसे फील होता है कि वो पर्टिकुलर बच्चा जो है वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। फिर कौन कौन बच्चे रोज नहीं जुड़ते हैं उसके बारे में भी हम खोजबीन करें, लेकिन कभी कभी हमें अपनी असमर्थता ऐसे लगती है कि हाँ हम हर एक बच्चे के पास अभी इतना प्रयास करने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रहे और वो अभी भी नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन एक तरह से हमारा भी लिमिटेशंस भी आ जाता है कि कितना भी कोशिश कर लो, पेरेंट्स का भी नेटवर्क इश्यू रहता है तो वो फोन नहीं उठा पाते हैं या अपने बच्चे के लिए वो कुछ प्रयास नहीं कर पा रहे, ऐसा उनको भी लगता होगा। और इस साइड देखा जाए तो टीचर्स भी मतलब अब क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों ओर से स्ट्रगल का चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा है, अभी हम माहौल को सुचारू रूप से चला रहे हैं और काफी बच्चों को भी अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर रहे हैं कि भैया अभी ये संघर्ष का ही समय है, हमें आपको इस तरह ही मिलना है, इस तरह से ही सीखना है। तो ये 24 आवर्स की ड्यूटी और उसे हम एक्सेप्ट करते करते चलते हैं। थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन फिर भी हम धीरे 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 इससे यूज्ड टू हो रहे हैं। ऐसे हमारा काम अभी चलेगा, ऐसा मान के कोशिश जैसे छोटा बच्चा करता है ऐसे। लेकिन हम मिस तो बहुत करते हैं हमारे बच्चों को भी और सामान्य वातावरण जल्दी से हो जाए ऐसा हमें लगने लगा है अभी। बिल्कुल मैडम। तो मैडम अभी एक बात बताऊं कि काफ़ी सारे और हमारे टीचर्स ओझा सर, के मौर्या सर, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं लाइव सेशन को देखने के लिए। और यहाँ तक कि आपके हाल फिलहाल के स्टूडेंट में एक आदित्य देसटी जो मेरा बेटा है, हाँ, वो भी कह रहा है कि जी मैडम, डिलाइटेड टू सी द एंथुजियाज्म ऑफ आवर टीचर्स। तो ये है मैडम। और हमारे टीम के ही मेंबर्स हैं जो मैसेज डाल रहे हैं सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिनमें सचिन राउत हैं जो हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम में है वो। तो मैडम सेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम मिलकर के रितु मैडम को और गीता मैडम को एक टास्क देते हैं। हाँ जी, क्या है मैडम, क्या कराएं इनसे? रितु मैडम और गीता मैडम दोनों मिलके जो परेशानियां हमें हो रही है या बच्चे भी जो सह रहे हैं उस बात को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। दोनों मिलके, हम मेरी सहयोगी दोनों और दोनों मिलके अभी प्रस्तुत करेगी ये ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है। अच्छा, मतलब एक स्टूडेंट बने और एक टीचर बने। हाँ हाँ, एक जो है गीता सबरवाल मैडम है वो बच्चा है और रितु मिश्रा मैडम जो है वो टीचर है, क्लास 1 को पढ़ाएगी अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आनंद लीजिए ये पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है जी, चलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं रितु मिश्रा। अब हमारा लाइव सेशन, फर्स्ट क्लास की मैं टीचर हूँ और मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। और मैंने अपना गूगल मीट ऑन कर लिया है, बच्चे जो है वो स्क्रीन पे आ गए हैं। कुछ बच्चों ने अपना वीडियो नहीं ऑन किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए बच्चे लोग। थोड़ा सा हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं, फिर हम अपने कोर्स की तरफ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अरे गीता, तुम अभी सोकर उठी हो क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम अभी सोकर उठी हो क्या? हाँ मैम नींद पूरी नहीं हुई है, नींद आ रही है। अरे अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, जब स्कूल खुलता था तो 7 बजे 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचती थी कि नहीं? लेकिन मैम आपने इतना होमवर्क दिया था, रात को मम्मा ने इतनी देर तक काम करवाया, मैं थक गई थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई आज। कहाँ, एक पेज ही राइटिंग के लिए दिया था और एक पेज में स्पेलिंग्स दी थी, इसके अलावा तो तुमको कुछ भी नहीं दिया था। फिर ये काम लेकिन मैम स्पेलिंग याद करने बड़े मुश्किल लग रहे थे, वो सब करना था। अच्छा, ठीक है, चलो तो पहले मुंह धोकर आओ, मुंह धो, हम अच्छे से बैठ के पढ़ाई करते हैं। स्पेलिंग्स कैसे याद करते हैं वो मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है? मैम ठीक हो आप? अरे वाह, पहले कैमरा तो ऑन करो, मुझे तुम दिख ही नहीं रही हो। जी मैम आप? ओहो वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। चलो अब हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमने कल पोएम की, ठीक है? तो हम उस पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मैम रुकिए,
मम्मा नहीं है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा पूछो पूछो। मम्मा के सामने नहीं बोलना, मैंने आपसे ये पूछा। मम्मा के सामने क्या नहीं बोलना है बताओ। मैम मम्मा कहती है मैं नालायक हूँ। मैं नालायक हूँ क्या? ये कौन सा नया शब्द है? नालायक तो कोई शब्द ऐसा है नहीं, तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, सबसे एक्टिव। नालायक का मतलब क्या हुआ? नालायक का मतलब ऐसे नहीं, तुम तो सबसे अच्छी एक्टिव बच्ची हो ना। मम्मी को आने दो, मम्मी को मैं क्यों बता। कहती है? तो तुम मम्मा की बात नहीं। मम्मा को ऐसे बताओ मैं नालायक नहीं हूँ। मैं मम्मा को बताती हूँ, मम्मा आ जाए तो तुम मुझे बताना, मैं मम्मा को बताती हूँ कि तुम नालायक हो। मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है। ओके ओके। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तुमसे, ठीक है? मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुम आंसर देना, तो मम्मा को समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा गीता, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री? इंडिया। इंडिया इज नेम ऑफ माय कंट्री। वाओ वाओ, वेरी गुड। मतलब कि तुम अब जो है सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो मेरी क्लास में। अभी तक किसी को ये पता नहीं था, पता है? सिर्फ तुमको ये बात सच्ची में पता है। मैम, सच्ची में? यू आर द ग्रेट, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, है ना? थैंक यू मैम। ओके मैम एक बार और बोलिए, मम्मा सुन रही है, एक बार और बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। गीता इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, ठीक है? अच्छा गीता, पहले ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। तुम ठीक से कभी नहीं बैठती हो, हमेशा या तो तुम लेट जाती हो या तो एकदम सीधे स्ट्रेट। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करिए। मैंने बैकबोन सीधी कर ली। हाँ बैकबोन एकदम सीधी, यस वाओ गुड। चलो अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बताओ, तुमको मैंने स्पेलिंग याद करने के लिए दी थी कल, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी स्पेलिंग से स्टार्ट करते हैं। एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग बताओ। एप्पल, एप्पल, ए फॉर एप्पल, पी फॉर पैरेट, फिर से पी फॉर पैरेट, एल फॉर लॉयन एंड ई फॉर एलिफेंट। तो सबको मिला के एप्पल। ये कैसे स्पेलिंग हुआ? तुमको तो उसके एक एक लेटर्स बोलने हैं ना, ये कैसी स्पेलिंग हो गई? स्पेलिंग याद नहीं होता था, पैरेट से याद हो गया। 2 बार पैरेट आएगा ना तो याद हो जाएगा। 2 बार पैरेट है तो 2 बार पी भी याद कर सकते हैं ना अपन, ऐसे याद करते हैं, ठीक है? ए पी पी पैरेट वाला पी 2 बार, ठीक? एल ई। तो मतलब मैम पैरेट को दिमाग में रखना है, बोलना नहीं है। हाँ पैरेट को दिमाग में रख लो और फिर उसके बाद, लेकिन बोलेंगे जब हम ना स्पेल करने के लिए बोलेंगे तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? मैम एक मिनट मैं पानी पी लूं। मैं पानी पी लूं। ठीक है पानी पियो, जल्दी पियो पानी, ठीक है? ओके हाँ मैम ठीक। हाँ अब चलो, अब हम नेक्स्ट जो है एक और स्पेलिंग देखते हैं, ठीक है? एप्पल तो इजी थी और पोयम में एक बहुत बड़ा एलिफेंट आया था, ठीक है? तो एक बार एलिफेंट की स्पेलिंग बताना जरा। मम्मा जल्दी बताओ ना, टीचर एलिफेंट की स्पेलिंग पूछ रही है। मम्मा से नहीं पूछना है, अभी हम और आप पढ़ रहे हैं ना। मैम मम्मा हेल्प करती है ना। मम्मा को बोलना है कि अभी हेल्प नहीं करना है, जब आप काम करेंगी, जब मैडम याद करने के लिए देंगी तब हेल्प करना है। अभी आपके और मेरे बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। स्कूल में तो क्लास में मम्मा आती नहीं है। एलिफेंट के स्पेलिंग नहीं आते हैं। एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती है? अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ, मेरे साथ साथ बोलना, फिर मैं इसमें छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी तुमको याद करना, ठीक है? ई एल ई पी, फिर से पैरेट, पी फॉर पैरेट। तुम्हारे मुंह में कुछ है क्या? कुछ खा रही हो तुम? मैम नहीं। हाँ मैम। क्या खा रही हो? मैम लेट उठी ना तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मम्मा बीच बीच में एक एक बाइट दे रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खराब बात है। तुमको सुबह इसीलिए मम्मा बोलती कि सुबह जल्दी उठो, नाश्ता करो और फिर बैठना है। पढ़ाई के समय ये सब नहीं करना है, ठीक है? चलो हम स्पेलिंग करते हैं एक बार। सॉरी मैम। ओके चलेगा। ई एल ई पी एच एंड की स्पेलिंग आती है क्या तुमको? एंड ANT एंट। बस लास्ट में लगा दो ANT एंट, हो गया एलिफेंट। इतना बड़ा एलिफेंट, उसके साथ एंट भी? हाँ तो छोटी सी एंट लास्ट में और आगे एलिफेंट। ELE PH और एंट लास्ट में। याद कर लेना, तोड़ तोड़ के याद हो जाएगी इजीली, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो मैम मैं एंट को भी याद रखूं, बीच में जब लास्ट में बोलना है तो मैं क्या बोलूं? ELEPH एंट।
एंट को याद रखना है सिर्फ स्पेल करने के लिए, लेकिन वो रहेगा, ठीक है। और बाकी अभी जो वर्क असाइनमेंट तुमको दिए हैं सारे गूगल क्लासरूम में बोलना, मम्मा को अच्छे से कर देंगे और सारी बात मम्मा की माननी, ठीक है। और होमवर्क कम देना, होमवर्क कम ही दिया है मैंने, कम ही दिया है, ज्यादा स्क्रीन नहीं, नोट करना टेक्स्ट बुक से ही है। ऐसा नहीं कि तुम मोबाइल लेकर बैठी रहो और बोलो मम्मा मैं मोबाइल से ही करूंगी, मोबाइल से कुछ नहीं करना है। मोबाइल में पेज नंबर दिया है, उससे टेक्स्ट बुक उठानी है और फिर टेक्स्ट बुक से सारा काम करना है, ठीक है। क्लियर टू यू? ठीक है मैम, थैंक यू रितु मैम, बाय 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 बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, चलो। ओके मैम, ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क। हेमलता मैम, Great job, ma'am. Great job. This is really great. I mean, two of you have displayed the amount of hard work you put in. Actually, इस तरह से छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी रोज पढ़ाना पड़े और सारे बच्चों को एक एक करके। It's really difficult, madam. Hats off to you. ये तो एक ही बच्चे थे मैडम, ऐसे तो बहुत बच्चे होते हैं तो बार बार माइक ऑन करते हैं और बार बार सबको मना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सही है। एक्चुअली आपका टास्क बहुत ही डिफिकल्ट हुआ है ये पैंडेमिक सेशन में मैडम। सो लेट अस होप कि एवरीथिंग गोज नॉर्मल वेरी सून, और आप जैसे क्लासरूम में आपके बच्चों के साथ समय आपका रहा है वैसा वापस आ जाए। No, but we are becoming techno savvy now. We are using that is a great part of it. Yes. Yeah, that is the way. Yeah. So applause भी मिले हैं बल्ला मैडम की तरफ से। और रवि कुमार जी हैं जो वेरी गुड गीता बेटा एंड रितु मैडम ऐसे लिखा है उन्होंने, धन्यवाद। आई डोंट नो हिम, लेकिन मैं आपको कमेंट जो उनका आया है वो सुना रही हूँ। मैडम अभी हम लोग जो है म्यूजिक सर, क्योंकि वो थोड़ा देर से हमसे टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से जुड़े हैं, एक टास्क उनको देना चाहते हैं। और ये टास्क जैसे आपको मैंने और स्वाति मैडम ने मिलकर टास्क दिया था, वैसे म्यूजिक सर के लिए टास्क मैंने और प्रिंसिपल सर ने सोच के रखा है। सो प्रिंसिपल सर और मैं, हम दोनों सर को एक टास्क देना चाहते हैं। आई थिंक he is ready. Yeah, yes. सर, म्यूजिक सर, इनको क्या टास्क दिया जाए? एक काम करते हैं सर, इनके लिए हम म्यूजिक से रिलेटेड ही कोई टास्क रखते हैं। जैसे बिल्कुल वही ठीक रहेगा। क्लासिकल म्यूजिक जो है धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, आज की जनरेशन उसको टच में नहीं रख रही है, उनको रैप, रिदम यही सब चाहिए होता है। तो क्यों ना हम म्यूजिक सर को एक टास्क देते हैं जिसमें वो आज का जो रैप है उसमें वो क्लासिकल टच लाके दिखाएं हमें। बहुत बढ़िया है ना, ताकि आगे चल के जनरेशन जो है रैप में भी गाएं तो क्लासिकल टच मिले और उनको पता चले कि शास्त्रीय संगीत भी मायने रखती है, और उससे संगीत का जो लय है, जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाती है। नहीं, परदेसी जी बना लेंगे उसको, वो काफी प्रतिभावान है हमारे। ओके, तो चलिए सर, आज आपकी प्रतिभा का भी हम आपका माइक बंद है सचिन सर, माइक ऑन कीजिए। म्यूट में है सर, म्यूट है, म्यूट हटाइए। हाँ, नाउ यू आर इन सर। ओके, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, आ रही है। जी जी तो जी सर, जी जी लाके आप दिखाएं हमें वो टच रैप। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य, अभी हम सीधे क्लासिकल के लिए गाना या कुछ बताना शुरू करेंगे तो जो नई जनरेशन है वो तो शायद ऑफलाइन हो जाएगी। जी जी जी। क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सब आप सब जानते हैं, किस तरह के गाने और रैप और ये सब चल रहा है। तो मैंने भी वही सोचा कि हमको जिस तरह से अभी ऑनलाइन टीचिंग के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा और हम लोग तैयार हो गए, तो जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको हमें अगर वापस लाना है तो हम क्यों ना इन्हीं रैप का और ये सब चीजों का इस्तेमाल करके वो इसको रैप समझ के गाएंगे और उसके बाद उनको इनडायरेक्टली अपने आप क्लासिकल का जो है एक जानने की क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तो एक कोशिश है मेरी, मैं शुरू कर रहा हूँ, रिदम ट्रैक में लगाऊंगा और उसके साथ मैंने लिरिक्स ऑलरेडी भेज दी है, वो शायद सुजीत सर उसको डिस्प्ले कर दे
और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसको एक जिस इसमें बनाया है पूरा रैप है। आप कहोगे भाई आप क्लासिकल का करने वाले तो रैप क्यों कर रहे हैं, तो ये जब आप सुनोगे इसके लिरिक्स तो आपको मेरा उद्देश्य क्लियरली समझ में आएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं गा के इसको खत्म करूं और लोग सुने और बस यहाँ पे कहानी रुक जाए। तो इसमें जो आगे एक्सटेंड करना है इसको मैं चाहूंगा सभी लोग इसमें अपने लिरिक्स ऐड करके हमें यहाँ पे भेजे, और उसको जब वो मेरे पास आएंगे लिरिक्स तो उसको मैं इसमें ऐड करके कोशिश करेंगे कि अगर इसी कार्यक्रम में हो गया तो, क्योंकि रैप में तो अभी आप क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने लिरिक्स बराबर मीटर में उसको रिदम में करना है। यहाँ मेरे जो मैंने लिखा है इसमें कुछ उसका व्यंग है, विडंबना है, तो यहाँ पे किसी का भी कोई अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। ये मैं यहाँ सबसे पहले, हाँ, हम ना किसी का मजाक बना रहे हैं, हाँ, लेकिन जरूर है हमें किसी को क्रिटिसाइज करने का हक है। जैसे क्लासिकल को भी क्रिटिसाइज किया जाता है तो एक्सेप्ट किया जाता है, भाई ठीक है। तो वैसे इनको भी वो तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपका रैप भी चले, क्लासिकल भी चले। तो मैं साउंड ट्रैक लगा रहा हूँ, आप लोग लिरिक्स सुन करके और हो सके तो शायद कमेंट में या सुजीत जी जैसे भी पॉसिबल हो उसके लिरिक्स वहां पे डिस्प्ले होते जाएंगे ताकि आपको पता चले किस टाइप का लिरिक्स आपको बनाना है और इसको एक्सटेंड करना है। तो ये एक पैराग्राफ मैं यहाँ डालूंगा। जी बोलिए सर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं कि सर चाहते हैं कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो। सर शुरू के 4 लाइन गा रहे हैं इसकी, जिसे हम मुखड़ा कहते हैं, और बाद के 4 लाइन जो भी हैं आप हमें भेजें ताकि सर का गाना पूरा हो। सही है ना सर? जी जी, काफी 4 लाइन नहीं है 4 लाइन बोल के जिस तरह से लोग बड़ा भाषण करते हैं वैसे यहाँ भी है। ठीक है ठीक है, कोई बात तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अच्छा, म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है? बीट आ रही है, रिदम पकड़ पा रहे हैं? One, 2, 3, start. इसके वर्ड्स कुछ इस तरह से हैं। मेरा मन चंचल चंचल ना गाए क्लासिकल। ओके, वन, मेरा मन चल 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 चल। 1, 2, 3 स्टार्ट। मेरा मन चंचल चंचल ना गाए क्लासिकल। मेरा मन चंचल चंचल ना गाए क्लासिकल। मेरा मन चंचल चंचल ना गाए क्लासिकल। आओ मुझको न भाए सा सारे रे कैसे गाए, कुछ भी गा के काम चल जाए तो इतना मुश्किल क्यों हम गाए। पद पद मप मप गम रे ग सा, पद पद मप मप गम रे ग सा, पद पद मप मप गम रे ग सा। मेरा मन चंचल चंचल, मेरा मन चंचल चंचल ना गाए क्लासिकल। मेरा मन चंचल चंचल ना गाए क्लासिकल। सब लोग सुन पा रहे हैं मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ रिटर्न आवाज नहीं आ रही। 1, हे आ आ ओ मुझको न भाए सा सा रे रे कैसे गाए, कुछ भी गा के काम चल जाए तो इतना मुश्किल क्यों हम गाए। पद पद मप मप गम रे ग सा, पद पद मप मप गम रे ग सा, पद पद मप मप गम रे ग सा। मेरा मन चंचल चंचल टिक टिक टक 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 ना गाए क्लासिकल। टिक टिक टक 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 टक। मेरा मन चंचल चंचल। ये बीट होते हैं
जिसपे रैप बनाया जाता है, अब आप लोग वर्ड्स पे गौर करेंगे क्योंकि इसी तरह का आपको बनाना है। मेरा मन चंचल चंचल ना गाए क्लासिकल। रैप पॉप पॉप रैप का है जमाना, रिमिक्स में नाचे हर पुराना गाना। गाना 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 गाना, रैप पॉप पॉप रैप का है जमाना, रिमिक्स में नाचे हर पुराना गाना। डीजे वाले बाबू किए जनता दीवानी, काला डांस करे पी के 4 बोतल पानी 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 पानी। रैप पॉप पॉप रैप का है जमाना, रिमिक्स में नाचे हर पुराना गाना। डीजे वाले बाबू की है जनता दीवानी, बाला डांस करे पे के 4 बोतल पानी 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 पानी। खास नहीं बेस चाहिए, बड़बड़ाने की रेस चाहिए, मुझसे क्या लेना बस वायरल होना चाहिए। सुर से क्या लेना, तक 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 तक। खास नहीं बेस चाहिए, बड़बड़ाने की रेस चाहिए, सुर से क्या लेना बस वायरल होना चाहिए। सीखने का टाइम नहीं, प्रैक्टिस का काम नहीं, मुंह में आया बोल दो बस बीट्स मिलना चाहिए। टिक टक तक 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 मेरा मन चंचल चंचल, टिक टिक टक तक 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 मैं गाए क्लासिकल। हाँ, रैप पॉप पॉप रैप का है जमाना, रिमिक्स में नाचे हर पुराना गाना। डीजे वाले बाबू की है जनता दीवानी, बाला डांस करे पी के 4 बोतल पानी 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 पानी। खास नहीं बेस चाहिए, बड़बड़ाने की रेस चाहिए, सुर से क्या लेना बस वायरल होना चाहिए। सीखने का टाइम नहीं, प्रैक्टिस का काम नहीं, मुंह में आया बोल दो बस बीट्स मिलना चाहिए, बीट्स मिलना चाहिए। मम्मी बोले पापा बोले तू क्या बड़बड़ाए, गाय की रोए कुछ समझ आना है। पॉपी, ये नया वर्ड है पॉपी। मम्मी बोले पापा बोले तू क्या बड़बड़ाए, गाय की रोए कुछ समझ आना है। पॉपी और रैपी, पुराने गानों की भी वाट लगा दिया तूने, अच्छे गानों का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ग्रेट सर। पॉपी, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है तो उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। पॉपी हो या रैपी हो, टिकटॉक की लॉबी हो, सबने मिलके ऐसा काम कर दिया। पॉपी हो या रैपी हो, टिकटॉक की लॉबी हो, सबने मिलके ऐसा काम कर दिया। म्यूजिक को ही म्यूजिक से गायब कर दिया, गायब कर दिया, गायब कर दिया। मेरा मन चंचल चंचल, टक 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 ना गाए क्लासिकल। टक 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 मेरा मन चंचल चंचल, ना गाए क्लासिकल। आओ मुझको न भाए, सा सा रे कैसे गाए, कुछ भी गा के काम चल जाए, इतना मुश्किल क्यों हम गाए। मेरा मन चंचल चंचल, टक 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 ना गाए क्लासिकल। टक 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 मेरा मन चंचल चंचल। One, 2, 3, 4, stop. वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल सर। काफी बढ़िया रहा, सुनने में भी मजा आया और व्यूअर्स में भी काफी सारे, जी सर बहुत बढ़िया रहा। काफी सारे हम लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं। अरुणा मैडम ने भी लिखा है लव इट। मौर्य सर, जेके मौर्य सर पूछ रहे हैं सर कि कब मुलाकात होगी आपसे। सर जब तक कि हम लोगों को व्यूअर्स अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सर के इस गाने को और आगे बढ़ाएं, अपनी तरफ से कुछ लाइनें जोड़ दें सर के गाने में, आगे बढ़ाइए। अभी वो जी आगे बढ़ाते हैं, अगर पूरा लाइन हो जाता है तो इसी सेशन में हम आगे गाना बना के भी सुनाएंगे। पर सर हमारे पास एक और मैसेज है हमारे पास में। हमारी एक प्राचार्य रही हैं ममता मैडम, जिन्होंने टीचर्स डे के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं सर। तो हम एक बार उनके मैसेज को सुन लेते हैं, तब तक
हम वेट भी करेंगे कि कोई टीचर्स। सर आपके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन आई है सर, तालियां ओह, हुई हैं थैंक आपके लिए। यू। जी मतलब लिरिक्स समझ में आया इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया उसको। एक्चुअली रैप में नहीं सिर्फ एक ही बार गा के आगे बढ़ जाते हैं। जी जी, तो काफ़ी एंजॉय हुआ है ये भी सॉन्ग। तो सर हम एक बार वो मैडम का मैसेज सुन लेते हैं। मैडम काफ़ी जरूर, जी सामने है। स्वागत है। जी, हमारी प्रिंसिपल मैडम रही हैं ममता भट्टाचार्य मैडम, केवी करंजा की। Hello everyone, I am Mrs. Mamta Bhattacharya, ex-principal KV Karanja. First of all, I should congratulate you all alumni of KV Karanja for creating this KVK staff room. Thanks for just giving, we are interacting with our seniors, fellow colleagues. So congratulations to you all. I spent my 18 years as principal in Mumbai, but KV Karanja was a special school for me too. I joined KV Karanja on 1st July 2011 and I was there for 3 years. I left school on 31st July 2014. And like many others, my stay in KV Karanja was like a dream. So the reason behind this, in my observation, there is a strong bond between students and teachers. Though students are fully dependent on school because they have no many other opportunities behind, but the connection they have with each one of us was very, very emotional. And this indicates in your KK Karanja staff room conversation daily. Today we are celebrating birth anniversary of our great teacher of our country, Sarvapalli Sri Radhakrishnan ji. So let us think and be proud to be with our job. And I salute all my teachers and staff of KV Karanja, KV Sangathan, and all over world who are associated with teaching community. And great salute to everyone. In this pandemic situation, I feel proud that KV Karanja conducted the Golden Jubilee of his school in a very nice virtual way, and we witnessed that program. So hope that such type of union will be more and more future. I want to end my thought with these two lines. दृश्य यह महान है, चल रहा जहान है। दृश्य यह महान है, चल रहा जहान है। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच ममता भट्टाचार्य मैडम। मैडम काफ़ी बिजी रही हैं इन दिनों में अपने शेड्यूल्स में, मैं उनसे टच में रही हूँ, मगर इतने बिजी शेड्यूल्स में से भी उन्होंने अपना समय निकाला, कीमती समय दिया हमको, ये मैसेज हमारे टीचर्स के लिए दिया। मैडम हम सब आपके आभारी हैं इस बात के लिए। और इसके बाद हम एक और वीडियो है जो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, और ये वीडियो हमको भेजा है हमारे आज के जो शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय करंजा के, अमित कुमार सर। कर्टसी उनकी है कि उन्होंने अपना एक वीडियो हमारे साथ शेयर किया। केवी करंजा में जितने बच्चे हैं, जो 2 टीचर्स हैं, उनका एंथुसियाज्म लेवल जो है, एंथुसियाज्म वो अलग ही होता है, और जोश उत्साह ये भरपूर हमेशा देखने को मिलता है। हम उस स्कूल से पास आउट होकर एक ज़माना हो गया, मगर आज भी अगर देखा जाए तो एंथुसियाज्म की कमी नहीं है हम में भी और हमारे टीचर्स में भी, और ये हमें पिछले कुछ सेशंस में देखने को भी मिला है। उसी को दिखाता हुआ ये एक वीडियो है। अमित कुमार सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल वीडियो विद अस। सो लेट अस ऑल वॉच दिस। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच सर। अमित सर, आप जानते हैं आपके सहकर्मी ही हैं, वो केवी करंजा के ही एक स्टूडेंट हैं और आज वो स्पोर्ट्स कोच के तौर पे काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा तो इंट्रोडक्शन आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी के साथ ही जुड़े हुए हैं वो। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर टीचर्स डे के लिए ये एक अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अमित कुमार सर। तो सर अभी देखें कोई मैसेजेस। सर जब तक और लाइंस जुड़ते नहीं है, क्यों ना हम व्यूअर्स को कुछ और टास्क दें। म्यूजिक सर। म्यूजिक सर के पास एक टास्क है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जो वो धुन चलाएंगे और वो धुन के हिसाब से हमारे व्यूअर्स को बताना है कि कौन सा गाना है। सर यही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। हाँ, थोड़ा सा हमने इसको कोशिश किया था तो हार्ड लग रहा था, इसलिए हम थोड़ा इजी कर देते हैं। एक तो वही तरीका होगा जो अभी तक हुआ है। गाने की धुन कोई और होगी, शब्द कोई और होंगे, मतलब किसी और गाने के शब्द में किसी और गाने की धुन को गाया जाएगा और इनको वो पहचानना तो है ही कि ये किस गाने की धुन है। लेकिन उसके बाद इसे इनको अपनी मदर टंग जो है उसमें इसको कन्वर्ट करके गाना है। अभी जैसे चलो शुरू ही कर देते हैं, तो बताने में मजा नहीं आएगा, डायरेक्ट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है। इस बीच में सर एक मिनट, ऋतु मैडम के लिए, गीता मैडम के लिए और स्वाति मैडम के लिए, हमारे सारे टीचर्स, कोलगांवकर मैडम, जेके मौर्य सर, सभी के मैसेजेस आ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी यू लाइव। मैडम आप चाहें तो बाद में सेशन के बाद फेसबुक में जो हमारा ये सेशन है उसको देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी मैसेजेस हैं। और किरण सर लिख रहे हैं, सर कांग्रेचुलेशन सचिन, लिसन यू आफ्टर 27 ईयर्स। ओह जी सर, लिरिक्स के मामले में एक जी हाँ जी बोलिए सर, एक लाइन आया है जिसे लिखने वाले का नाम है आदित्य, आप ही के स्टूडेंट हैं क्लास 2 लास्ट के, और इन्होंने लिखा है कि मेरा मन छन 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 चंचल, न गाए क्लासिकल, ट्रेंडिंग शब्दों को जोड़ जोड़ चंचल हाँ जाता है चल। एम आई क्लियर सर? मेरा मन चन 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 चंचल, न गाए क्लासिकल। अच्छा, मेरा मन छन 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 चंचल, न गाए क्लासिकल, ट्रेंडिंग शब्दों को जोड़ जोड़ के काम जाता है चल। ओके बिल्कुल सर, लिखने वाला मेरा बेटा तो अभी तो क्या बात है, आप जानते हैं मैं बाद में बात करूंगी इसको। जी, और अभी तो इसमें क्या है, लिरिक्स की भरमार होनी चाहिए, क्योंकि बहुत 5 गानों का लिरिक्स 1 मिनट में खत्म हो जाता है। अच्छा, तो देखते हैं सर, हमारे व्यूअर्स बराई सर अगर हैं तो वो कविताएं वगैरह भी लिखते हैं। सर अगर आप हैं हमारे साथ में अभी भी, तो कृपया अपने कुछ रचनाएं दीजिए, यहाँ पर हमें जरूरत है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं सर आगे। व्यूअर्स के लिए टास्क है ये। हाँ, और हमारे पार्टिसिपेंट्स टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई। अच्छा ठीक है सर, तो मैडम और प्रिंसिपल सर तैयार रहिए आपकी भाषा में कन्वर्ट करके गाने के लिए। रेडी सर। अब मैं लिरिक्स किसी दूसरे गाने की गा रहा हूँ और धुन किसी दूसरे गाने की। सुनिए, थोड़ा आसान रखा है। हाँ, म्यूजिक में ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन के दिन छोटे, आवाज आ रही है? जी सर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले,
जीवन के दिन वेरी गुड वेरी गुड। गाइए गाइए गाइए। अरे भाई हमको एक काम करते हैं, हाँ हमको क्लासिकल म्यूजिक की संभावनाएं तलाशनी है आप लोगों में। अच्छा सर, एक व्यूअर से भी एक आंसर मिला है हमको। रवि कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है जीना यहाँ मरना यहाँ। बिल्कुल। अब इसको अपनी मदर टंग में गाना है, इसके वर्ड्स को। एक्सक्यूज मी। मदर टंग हिंदी है। मदर टंग आपकी गुजराती, हिंदी, मराठी। हिंदी तो है ही गाना, भोजपुरी है ना सर मैडम, गुजराती। अभी जैसे मराठी में मैं चाहूँ तो, कोई नहीं कर रहा होगा तो मैं बता दूंगा एग्जाम्पल के लिए, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि कोई करे खुद। अच्छा, तो व्यूअर्स हमारे इतना बता रहे हैं, जैसे अनिल महाजन जी हैं, इन्होंने भी लिखा है जीना यहाँ मरना यहाँ। सर एक्चुअली इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग जाता है, हमारे व्यूअर्स का व्यूज आने में एक 10 से 15 सेकंड की देरी हो जाती है कमेंट्स। जी 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 जी, हमको वेट करना पड़ेगा। तब तक हाँ, आप नहीं दूसरा कोई सॉन्ग सुना सकते हैं। कंपटीशन तो है नहीं। हाँ नहीं, इसका इसमें कोई मराठी या गुजराती में गा के दिखा रहा है? गुजराती के हमारे पास मैडम है ना सर, स्वाति मैडम। इन्हीं शब्दों को अपने भाषा में गाइए। हाँ मैडम गाइए। मैडम थोड़ा आवाज मरऊ वही। आ रही आवाज? हाँ हेलो, आ रही आवाज? आ रही है। जीवू अही मरऊ अही, आ सिवाय बीजे जाऊ नहीं। बस इससे आगे मुझे नहीं आता। और मैडम आपके लिए गीता मैडम, आपके लिए एक कमेंट आया है, फिर वही आदित्य का, कि गीता मैडम इज वेरी गुड सिंगर। आई रिमेम्बर मैम ने क्लास में ये दूरियां गाया था व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। आई थिंक ये आपके पहले टेन्योर की बात है जी। Isn't it? बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को लगता है कि हाँ हमारी टीचर गा रही है तो अच्छा ही है। मैडम ये बच्चा मेरा बेटा है तो आई ट्रस्ट हिम। ओके जी, थैंक यू। आई ट्रस्ट हिम। प्रिंसिपल सर, आप भी कोशिश कीजिए ना कुछ। मैं श्रोता बहुत अच्छा हूँ, और मतलब ये मैं तो सर हम दोनों एक कैटेगरी में हैं, क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि अगर मैंने गाना शुरू किया तो व्यूअर्स भी भाग जाएंगे। तो हाँ, इसलिए मैं सुन ठीक है सब सर, लेता तो हूँ। हम लोग व्यूअर्स और ऑडियंस बन जाते हैं। सर आप दूसरा सॉन्ग लाइए ना, म्यूजिक सर। सचिन ओके, सर। अब इस अगले गीत को मैं मराठी के एक गीत से धुन सामने रखूंगा आपके, क्योंकि वो उसका रीजन आपको, अगर आप कोई कंपोजिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं या रुचि रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस गीत को क्यों, मराठी के इस गीत को इस गाने के लिए क्यों मैंने गाया। ओके, आई विल ट्राई, क्योंकि यहाँ मैं सुरों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ। आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी, राधिके। कुछ अंदाज आया? सर एक क्लू दीजिए ना, थोड़ा धुन गुनगुना दीजिए। ओके ठीक है। ओरिजिनल गाना जो मराठी का है उसी से ये इसका धुन जो इंस्पायर्ड हुआ है। एक्चुअली दोनों का मिक्स करने में मुझे दिक्कत हो रही है। सर एक रेस्पॉन्स आया है सेकंड लाइन के सर का। हाँ, जिंकू किंवा मरू, पण आई थिंक सर अच्छा, वो जागू किंवा मारू, हाँ, जगू किंवा मरू, पण स्मृती। ठीक है, मैं इसकी दूसरी लाइन पे आप पकड़ लेंगे। राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी,
आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी, आज गोकुळात रंग खेळतो हरी। अब तो क्लियर है, देशभक्ति के ऊपर है। मैं आज हाँ, और थोड़ा ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ग्रेट मैडम, गुड। सर वैसे आपने जो पहला गाना गाया था उसका पंजाबी वर्जन भी मिला, अब इसको आप किसी और अच्छा अच्छा ओहो, तो क्या वो गा के सुनाएंगे? सर वो पार्टिसिपेट तो ठीक, कोई नहीं गया ना अभी? नहीं मैं अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा, मराठी में किरण सर ने आपके पहले गाने का आंसर दिया है, जीना यहाँ मरना जगू किंवा मरू, पण किरण सर ने आपका जवाब दिया है ये पहले गाने का मराठी में। ओके 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 ओके, तो उसका कुछ इस तरह से होगा, जगायचं, जी 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 जी, जगायचं इथे मरायचं इथे, याच्या शिवाय जायचं कुठे। तो म्यूजिक अपनी जगह कई तरह से एंटरटेनिंग है, उसकी ये कोशिश है। व्यूअर्स में से भी मिला है आंसर रवि कुमार सर की तरफ से कि ए वतन मेरे वतन राग रहे, जैसे मैडम ने जी जी जी। और इसका इसमें कंपोजिंग में एक चीज और होती है सुरों के अलावा, कि वो जो वेटेज होता है जिससे धुन बनती है, उसको किसी दूसरे गाने के वेटेज को निकाल के उसको फिट किया जाता है अपने कंपोजिशन में, और वो नया धुन बन जाता है। अभी इसमें जो आज गोकुळात रंग खेळतो हरे, ये है इसकी शुरुआत, और आए वतन की शुरुआत दोनों एक जैसी है, लेकिन आगे जाके उन्होंने इसको ऐसा कर दिया है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं से एक्चुअली, कोई अगर इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहता है तो प्लीज, ये मेरा अपना इसमें एनालिसिस है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि कोई धुन चुराई गई है। हाँ, इंस्पायर जरूर होती है धुनें, तो प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना करें मुझे, खाली म्यूजिक के कुछ नए रंग रूप लोगों के सामने रखने हैं कि कैसे इसको हम ज्यादा एंटरटेनिंग, कई लोग म्यूजिक को, कंपोजिंग को या क्लासिकल को जो बहुत हार्ड मान के बैठ जाते हैं, उनके लिए मेरी कोशिश है कि वो इसको इजीली करे, क्योंकि संगीत एक नेचुरल टैलेंट है और वो हर एक में है। उसको बाहर कैसे लाया जाए, उसके लिए सबसे पहले उसको उसमें इजी महसूस होना चाहिए, वही मेरी कोशिश होती है कि उनको इजी लगे। बट ये बिल्कुल नहीं है कि संगीत इजी है और आप लोग इसको बड़ा इजी समझ के ले ले, जैसे कि रैप वालों ने ले लिया है। ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं प्रिंसिपल सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी केवी कारंजा के बारे में, क्योंकि सेशंस कारंजा से ही रिलेटेड है। आप कारंजा में आए तो आपका कुछ माइंडसेट था कि कारंजा पता नहीं कैसा होगा, काफ़ी टीचर्स ऐसे सोच के आते हैं, कुछ दिक्कतें आई आपको? क्योंकि आपने डे 1 मुझे याद है जब आपने पेरेंट टीचर मीटिंग लिया था, बिकॉज माई सन वॉज देयर इन 9th स्टैंडर्ड, और तभी आपने एक मीटिंग अरेंज किया था पेरेंट टीचर्स का स्कूल में। So I met you for the first time at that time. So how is your experience in KV Karanja, sir? Obvious बात है कि मैं पहले PGT मैथ था और मैं नवोदय में था, तो KV मेरे लिए एक नया ही इंस्टीट्यूशन था। और जब मैंने देखा कि मेरा अपॉइंटमेंट जो है NAD करंजा में आया है, तो जब पहले मैंने NAD पढ़ा तो मुझे लगा कि नागालैंड तो नहीं है कहीं, कि ये जनरल रहता है कि फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगी तो नॉर्थ ईस्ट मिलेगी या उधर ही कहीं मिलेगी। और दूसरा, बाकी भी मैंने कभी NAD सुना भी नहीं था कि NAD कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, नहीं भी जानते थे हम लोग ये। फिर मालूम पड़ा मुंबई के पास में है, किसी तरह से आएंगे और आए वहाँ से। तो फिर भी नवोदय आपने से किसी ने देखा हो कभी या सुना हो तो वो बहुत ग्रामीण अंचल में होते हैं, और नवोदय वालों के लिए ये सोचना होता है कि जो KV है वो बिल्कुल शहर में है। तो मुझे भी लग रहा था कि ये KV बिल्कुल किसी मेन सिटी के अंदर ही होगा, लेकिन जब यहाँ जो हमारे पुराने वाइस प्रिंसिपल थे मिस्टर वानखड़े जी, PS वानखड़े जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि सर अपने को बोर्ड से चलना पड़ेगा।
तो जिस समय मैं आया यहाँ पर, अब वो मुझे बोट से लेकर आया चीता गेट से, और बड़ी भाई पता नहीं कहाँ टापू पर ये ले जा रहे हैं, और उतर के फिर वहां से हम लोग स्कूल तक आए। और उस समय विंटर ब्रेक चल रहा था। मैं 31 दिसंबर को आया था और 1 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था। तो स्कूल में ना बच्चे थे, ना टीचर थे, कोई नहीं थे, और खाली था थोड़ा सा। स्कूल की हालत भी थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, बाउंड्री वॉल टूटने और कलर वगैरह के साथ में। तो सच कहा जाए तो मेरे ख्वाबों की दुनिया से अलग था, उतना तो नहीं था, लेकिन जैसा कि जगजीत सिंह की गजल है कि ये मेरे ख्वाबों की दुनिया ना सही, लेकिन अब आ गया हूँ तो 2-4 रोज कयाम करता चलूं। और शुरू से मेरी आदत भी यही रही है कि बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना है। शुरू से सीखा भी ऐसा ही है। तो हमने कहा ठीक है, अब आए हैं तो इसी को बेहतर बनाएंगे, इसी का प्रयास करेंगे। लेकिन जब स्कूल खुला और बाकी टीचर्स आए, पेरेंट्स के साथ मुलाकात हुई, और धीरे धीरे फिर लगने लगा कि ये जिस तरह से हार्ड स्टेशन कहते हैं ज्योग्राफिकली होगा, लेकिन स्कूल के विषय में ऐसी कोई प्रॉब्लम हमको आई नहीं। और फिर धीरे धीरे स्टाफ हमको समझ गया, हम स्टाफ को समझ गए, पेरेंट्स का बड़ा अच्छा सहयोग मिला, स्टेशन अथॉरिटीज का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला। यहाँ जितने भी कोमोडोर आए, जितने भी एसओके आए, केवी करंजा के लिए सबका जो है इसे कहें कि सहयोग बहुत अच्छा रहा। तो बाकी टीचर्स अपने एक्सपीरियंसेस अगर बताना चाहें केवी करंजा में। स्वाति मैडम तो काफी समय से हैं। हाँ, मैं 2000 से यहाँ हूँ, और मतलब जब मैं आई तो मतलब मेरी फैमिली भी बन रही थी, तो इसलिए मेरी दोनों बेटियां भी इसी स्कूल में पढ़ी है। और इसीलिए मुझे ये जगह भी, क्योंकि वातावरण भी काफी प्राकृतिक है, बाकी है जो भी कमी है वो उसके साथ, लेकिन बॉम्बे के कंपैरिजन में ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैं काफी समय से यहाँ हूँ और मुझे अच्छा लगता है स्कूल में। काफी समय से मतलब बच्चे भी अच्छे हैं और स्टाफ वगैरह के साथ अच्छा लगता है, फैमिली एटमॉस्फेयर है। हाँ। तो मैडम, ऋतु मैडम। हाँ, मेरा ऑफिशियल तौर पे तो मैं 2009 से जुड़ी हूँ केवी करंजा से, लेकिन 2005 में मैंने जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई थी, तब से स्टाफ और बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ। और मतलब यहाँ पर समझ लीजिए मेरा मतलब मैं भी वही शादी होके 1 साल के अंदर इधर पर आ गई थी, और तब से इधर ही पर ही हूँ। मतलब मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो मुझे भी केवी करंजा, मतलब अगर अभी मुझे कोई बोलता है कि यहाँ से ट्रांसफर लेना है, जैसे मेरा बेटा भी है, तो मुझे सोच कर ही अभी घबराहट होती, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ था, मतलब शुरू से जो मैं देखती आ रही, बहुत ही कोऑपरेटिव। मतलब स्पेस अब तक कम रहा है, लेकिन फिर भी सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव, और साथ साथ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को तो मैं बोलूँगी यहाँ पर पेरेंट्स, मतलब कभी भी कोई भी मुसीबत या कोई भी परेशानी होती थी तो हमेशा मतलब खड़े रहते थे, मैडम आप हम लोग हैं। मतलब कहीं पर भी इस तरीके से अपने घर से बहुत दूर यहाँ पर आ रह रही है। मुझे भी केवी करंजा मतलब मेरा घर जैसा ही है। मतलब यहाँ से जाना तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी सोच के भी लगता है कि इधर से अगर कभी ट्रांसफर हुआ तो फिर आगे क्या होगा, लेकिन हाँ, केवी करंजा के साथ मेरी बहुत अच्छी याद है। गीता मैडम आप? मेरा तो ये सेकंड टेन्योर है केवी करंजा में। पहले मैं 2011 से 14 तक यहाँ रही हूँ, और करंजा के साथ मेरी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर यहाँ मिला है हमेशा। और उन दिनों में मैं मुंबई से आती थी, अप डाउन करती थी, और बोट से आना जाना होता था। तो हमारी एवरी सैटरडे, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी होती थी, तो बोट में भी एक गेट टुगेदर जैसा हो जाता था। लगभग 10 जन थे हम जो करंजा से मुंबई आने जाने वाले थे। बहुत सारी उस समय की स्मृतियां हैं, उस समय के लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। और खास बात है कि उस समय से लेके अब तक जितने बच्चे हैं अब भी कांटेक्ट में हैं, और बहुत प्यार मिला है इस स्कूल में मुझे। मैं बच्चों की बात करूं या उनके पेरेंट्स की बात करूं, चाहे हमें यहाँ कोई यूथ पार्लियामेंट करवाना हो, बच्चों ने ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और 60 बच्चों को कैसे हमने पूरे प्रोग्राम में शामिल किया, और किस तरह से
उन्होंने बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट दिखाई, दैट वाज अमेजिंग। अभी भी मुझसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं बहुत अपने आप में एक संतुष्टि महसूस करती हूँ कि मैं केवी करंजा की एक हिस्सा रही थी पहले भी और अभी भी हूँ। तो अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा स्नेह दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैडम काफी समय हमारा हो चुका है, आपका भी मैंने समय ले लिया है। लास्ट में मैं जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेशन जो हमने शुरू किए हैं टीचर्स को और हमारे पुराने टीचर्स को और सभी को एक साथ एक मंच पे लाने की, इसके बारे में सर, प्रिंसिपल सर आप 2 शब्द कहें, फिर हम ये प्रोग्राम की समाप्ति की ओर चलते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो प्रयास है ये देश और काल की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये आपदा ही अवसर है और ये मनुष्य की एक जिससे क्या अंतर्निहित उसकी शुरू से एक अंतर्निहित भावना रही है कि विपरीत परिस्थितियों में वो नए नए साधन ढूंढता है। इसीलिए मानव जाति जो है आज इतने अधिक शिखर पर, हो सकता है कि नकारात्मक रूप से भी हो, लेकिन इस आपदा ने हमें न सिर्फ बहुत कुछ सिखाया है बल्कि कई नई चीजें भी हम लोगों को दी हैं। जैसे मुझे ही लगता है कि इससे पहले इतने अधिक लोगों ने एक साथ इतने वर्षों बाद एक दूसरे को सुना, देखा और उनसे बातचीत की होगी और लोगों को ये भी समझ में आया है कि जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। और ये भी लोगों को इस मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अब कि 2 बेसिक चीजें जो हैं जैसे कि खाना पकाना और साफ सफाई, ये लिंग आधारित स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है। सिर्फ लड़कियों को ही खाना बनाने आना चाहिए या साफ सफाई आना चाहिए। अगर लड़का भी बाहर रह रहा है और मान लीजिए कभी लॉकडाउन हो गया, ऐसी स्थिति आ गई, कम से कम वो अपना खाना बना ले, अपने कपड़े धो ले और अपनी साफ सफाई कर ले। और इसके साथ साथ वाकई में हालांकि ये वर्चुअल दुनिया ही है, लेकिन इसने काफी कुछ दूरियां कम की हैं। हालांकि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम फिर से वास्तविक दुनिया में लौटेंगे, लेकिन केवी करंजा का मुझे लगता है कि अगर इस तरह का मेल मिलाप कार्यक्रम आज से 2-3 साल पहले भी यदि रहा होता या हमारे उसमें संपर्क में आया होता तो हमने विद्यालय में कोई बड़ा प्रोग्राम प्रत्यक्ष कार्यक्रम किया होता, लेकिन हम आगे करेंगे और जो लोग उसमें आ सकेंगे, ये जैसे ही महामारी खत्म होती है तो हम एक भव्य कार्यक्रम स्कूल के 50 वर्ष होने पर जरूर करेंगे और सभी को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। हमको भी इंतजार रहेगा उस दिन का, क्योंकि हम खुद भी आना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो स्कूल में आना चाहते हैं। समय हो गया, एक अर्सा हो गया उनको स्कूल देते हुए। सर आप सब आए आज, हमें अपना जो कीमती वक्त आप लोगों का वाकई बहुत कीमती है, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में आप काफ़ी ऑक्यूपाइड रहते हैं, फिर भी समय निकाल के आप लोगों ने हमें अपना शेड्यूल में से टाइम निकाल के दिया, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। म्यूज़िक सर, सचिन सर, आपका हमें स्पेशल थैंक्स करना है, क्योंकि आपने माहौल को थोड़ा सा अलग ही रंग दे दिया सर। मगर जाने से पहले मैं आप सबके साथ में और हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरू में ही कहा था कि आज का हमारा ये दिन और ये सेशन हम समर्पित करते हैं अपनी फेवरेट या वन ऑफ आवर फेवरेट मैडम्स, हमारी राजेश्वरी दिनेश द्विवेदी मैडम, जो अब हमारे बीच में नहीं है। तो हमने उनको एक ट्रिब्यूट, एक होमेज, एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। जाने से पहले हम वो वीडियो हमारे सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो हमने उनके निधन से कुछ समय पहले कैप्चर किया था। एक मोमेंट जब उन्होंने अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स के लिए अपना आशीर्वाद दिया था, वो प्ले करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर आज्ञा लेते हैं सर। तो viewers, please stay with us. We are going to play our favorite, our beloved teacher त्रिवेदी मैडम, जिनको हम चांद मैडम के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी पुराने टीचर्स उनको चांद मैडम के नाम से जानते हैं। तो उनका एक क्लिप हम प्ले करते हैं। सचिन, शायद थोड़ा सा टेक्निकल इशू है सर। Just 1 minute and we have exceeded our time limit.
मैडम आपकी यादें कैसी रही करंजा के साथ? बहुत अच्छी रही और शांत तो माहौल था ही, अच्छे प्यारे थे, अच्छे थे और स्टाफ प्रिंसिपल्स सभी अच्छे ही थे। काम अच्छा था। और बताइए, उनका आशीर्वाद है आप लोगों को, हमारे जो है अच्छे थे, सभी का सहयोग मिला और बहुत याद करते हैं मैडम, बहुत याद करते हैं। तकरीबन चर्चाओं में गाना जी, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। सर ये वो वीडियो है जो हमने मैडम के साथ एक सेशन, सर और मैडम दोनों के साथ एक सेशन कंडक्ट किया था, तब की एक क्लिप है जो हम दिखाना चाहते थे, क्योंकि हमारे जितने पुराने टीचर्स हैं आज भी उनको याद करते हैं। स्टाफ रूम में आज भी उनके को याद करके सभी की आंखें नम होती हैं। तो वी विल नेवर फॉरगेट यू त्रिवेदी मैडम और बिलवड चांद मैडम। और इसके साथ ही हम आज का हमारा ये सेशन समाप्त करते हैं। सभी व्यूअर्स को भी हम अपना थैंक यू, वी वुड लव टू से थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स who have joined us, stayed with us for this session. Thank you so much, sir. प्रिंसिपल सर, मैं आपकी भी आभारी हूँ और सारे हमारे शिक्षक, आप सभी का धन्यवाद। टीचर्स के लिए मैं आभारी हूँ। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। So, friends, thank you very much for being there with us for today's session. Do let us know from your comments. I'm sorry I was not able to read out all the comments because the session was going through and I never wanted to interrupt our teachers. So thank you very much to all our teachers and our friends for being with us. To conclude, I would say a happy Teachers' Day to all our teachers.